Assalamu alaikum everyone. Welcome to another round of our exciting workshops on how to start your own business. In this session, we have partnered with University of Karachi and is brought to you all by Circle Women Pakistan, whose mission is to advance women's economic participation, empowerment through innovative entrepreneurship, advocacy campaigns, and research. We develop and support the entrepreneurial and leadership capacity of women and youth in Pakistan to bring about economic growth and social change. Some of the initiatives by Circle include Tech Karo, She Loves Tech, and Elevate. Circle believes that it is critical for Pakistan's progress to invest in youth, especially women, to build their confidence, capacity, and create platforms for them to bring their ideas forward. These workshops are supported by Friedrich Naumann Foundation for Freedom, which aims to contribute to the enhancement of soft skills in the field of entrepreneurship, business management, strategic communication, business leadership, and responsible citizenship. Today's workshop on how to start your own business will be conducted by a very talented trainer, Mr. Talha bin Shuja, who's an entrepreneur, trainer, and mentor. He is currently working as Manager Incubation Center, Industrial Linkages and Technology Transfer at University of Karachi. He has been featured in the prime time at Metro News to discuss the trend of entrepreneurship in Pakistan. He has launched one of kind series Startup Better to promote entrepreneurship. He has successfully launched two startups, Kebabistan Restaurant and Asani Maintenance Services, online platform from Handyman Services, for which he has won 2.6 million in the category of ICT from USA. He has been working in startup fraternity for more than 7 years and currently mentoring startups at Pakistan's top business and tech incubators. So without any further delays, over to you, Talha. Thank you very much for a brief introduction. Okay, पहले आपको मैं टेक्निकल ग्राउंड थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि राइट नाउ वी हैव अराउंड 30 to 50 स्टूडेंट्स इन द ट्रेनिंग हॉल जो भी हमारे पास बैठे हुए हैं वहाँ पर वो सुन भी रहे हैं और कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन हमें लाइव सुन रहे हैं. So I'll be addressing queries of the students who are sitting physically over here and also with the students who are online. So I'll just share my slides और उसके बाद मैं formally start करता हूँ. Okay, can you see my slides? Yes, Online? we can. Yes, we can see your slides. Perfect. The topic of today's lecture is how to start your business. और इसके अंदर जो हम फोकस करेंगे दैट आर 4 मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट आर द थ्योरी ऑफ व्हाई, द आइडिएशन प्रोसेस, द कॉन्सेप्ट ऑफ द लीन स्टार्टअप एंड द राइट नेटवर्क. अब हम इस तरह रखेंगे कि सवालात को हम इन कैटेगरीज में डिवाइड कर लेंगे, यानी कि हमने अपनी प्रेजेंटेशन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है और वंस द फर्स्ट सेगमेंट इज कंप्लीटेड आई विल ओपन द क्वेश्चंस टू यू कि अगर किसी के सवाल हैं जो यहाँ फिजिकली यहाँ बैठे हुए उनके या ऑनलाइन हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके जो भी सवाल हैं वो पूछ सकते हैं. सिमिलरली इससे हमारा काफ़ी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में सारे हमारी चीज़ें हो जाएंगी. सो स्टार्टिंग विद के द थ्योरी ऑफ व्हाई. सबसे पहले सवाल ये आता है कि व्हाई यू वांट टू डू व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ. वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड. कुछ स्टूडेंट्स कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, कुछ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, कुछ साइकोलॉजी के हैं. इस तरह वी हैव कराची यूनिवर्सिटी में मोर देन 70 to 72 इंस्टीट्यूट्स एंड डिपार्टमेंट्स. सबका डिफरेंट बैकग्राउंड है. लेकिन सवाल ये आता है कि आपने जो अपना करियर पाथ चूज किया है वो क्यों चूज किया है. बिजनेस स्टार्ट करना तो बहुत बात की बात है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो व्हाई आर यू स्टार्टिंग, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ. नॉर्मली हमारा तरीका काम करने का क्या होता है, 3 चीजों पे हम फोकस करते हैं. दैट इज व्हाट, हाउ एंड व्हाई. हमारा जो ब्रेन
इस तरह वायर्ड है और हमें इस तरह बताया गया है स्कूलिंग लाइफ से कि हमें पहले बात करनी है वाई की, सॉरी पहले हमने बात करनी है व्हाट की, देन हाउ, देन वाई। अगर हम बात करते हैं कि लाइफ में आगे क्या पढ़ना है, पहले हम ये पूछते हैं, तो बात होती है कि भाई हमने ओ लेवल्स करना है या हमने इंटर बोर्ड से पढ़ना है। उसके बाद फिर बात आती है कि चलो ठीक है, आपने अगर हाई स्कूल कर लिया है या आपने इंटर मैट्रिक कंप्लीट कर लिया है, नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू। तो फिर आएगा किसी को मेडिकल फील्ड में जाएगा, कोई कॉमर्स, कोई आर्ट्स, कोई बिजनेस स्टडीज में जाएगा। तो सवाल ये आता है कि हमारे पास सबसे पहली चीज ये होती है कि क्या करना है लाइफ में, क्या करना है। पूछते हैं कि भाई कि इवन के हमारी सोसाइटी भी इस तरह वायर्ड है कि पेरेंट्स से पूछा जाता है कि आपके बच्चे क्या करेंगे, आगे जाके क्या बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लॉयर बनेंगे, क्या बनेंगे। लेकिन nobody asks why you want to become a lawyer or why you want to start your own business, why you want to start your career as a doctor. Nobody has answer to it. यही मेन रीजन है कि हमारे, कि आप किसी भी फील्ड में चले आए, जो मोटिवेशन लेवल है, जो अपनी फील्ड से कमिटमेंट है, दैट इज लैकिंग। तो हमारा तरीका क्या हुआ, पहले हमने बात की व्हाट की कि हमने क्या करना है, फिर हम बात करेंगे कैसे करना है। हम लेट्स सपोज कि अगर क्योंकि हमारे पास सारे ग्रेजुएट्स और मास्टर्स के स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर डेफिनेटली होंगे, तो हम इन्हीं को एग्जाम्पल लेकर बात करते हैं। तो हमने प्लान कर लिया कि भाई हम कॉमर्स की फील्ड में जाते हैं, रिगार्डलेस ऑफ एनी रीजंस कि मेरी परसेंटेज कम आई है या मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है या बाय चॉइस मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, रिगार्डलेस वॉट एवर रीजंस, क्योंकि आई बिलीव दैट आपकी परसेंटेज कम आए या ज्यादा आए, यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। आपके पास चॉइस थी कि आप ग्रेजुएट प्रोग्राम में एंटर ही नहीं होते, आप जो है मार्केट में जाते, जॉब स्टार्ट करते इंटर के बाद या मैट्रिक के बाद, और आप कुछ ना कुछ के लग ही जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बेचारे मैट्रिक पास हैं या द पीपल हु आर नॉट हैविंग फॉर्मल डिग्रीज के वो अर्न नहीं कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो सवाल ये आता है कि व्हाई यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। तो जब हमने बात की व्हाट की कि हमने क्या काम कर रहे हैं इस वक्त, उसके बाद फिर बात आती हाउ की कि अच्छा चलो हमने बिजनेस या हमें लेट्स सपोज हमें डॉक्टर बनना है। अब बात आएगी कि भाई डॉक्टर कैसे बनना है। हम फिर अपने ऑप्शंस देखेंगे, व्हाट ऑप्शंस वी हैव, कि हमारे पास कितने यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज़ हम अफोर्ड कर सकते हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज़ में मेरा एडमिशन हो सकता है। तो तमाम चीज़ों को हम एनालाइज करेंगे, फिर हम हाउ पे फोकस करेंगे। वंस वी आर इनरोल्ड इन द प्रोग्राम, अब हम सोचेंगे इसको पास कैसे करना है भाई, यहाँ से आगे बढ़ना कैसे है। फिर हमारे अगर हमारा 4 साल का प्रोग्राम है जो नॉर्मली बैचलर्स का होता है, तो हमने 4 साल अगर हमने फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज 2-3 साल हमने गुजार लिए, फिर हमें समझ में आता है यार 2-3 साल हमने पढ़ लिया है, प्रैक्टिकल नॉलेज तो हमें कोई गेन ही नहीं हुई है। फाइनल ईयर में फिर सवाल आता है कि यार कि अब हम मार्केट में जाने वाले हैं, वी विल बी लुकिंग फॉर जॉब्स। तो कैसे हम जॉब्स को देखेंगे, फिर कैसे फिर हम चीज़ों को देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो वो सेट ऑफ स्किल्स ही नहीं है जो जॉब की नीड है। फिर हम ट्रेनिंग से अटेंड करना शुरू करते हैं, फिर हम वाई पे आते हैं। तो हुआ क्या कि जो आपने 4-6 साल आपने पहले आपने जो सवाल पूछना था, वो सवाल सबसे आखिर में पूछना है। अगर हम इसकी बात करते हैं कि ये तो एग्जांपल आप मैंने दिए ताकि आप रिलेट कर सकें, क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि हमारे पास जो ऑडियंस है उसमें कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो इस वक्त बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं या करना चाह रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि ये सेशन इज डिजाइन फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स, ऑल दी पार्टिसिपेंट्स जो अभी सोच रहे हैं। अगर किसी के पास, अभी हम आगे सारे सेगमेंट्स आएंगे, इफ यू हैव एन आइडिया कि जिस पे आप वर्किंग करना चाह रहे हैं, अगर इससे भी पीछे एक स्टेप आ जाए, अगर आप सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करना चाह रहे हैं, आपके पास आइडिया भी नहीं है, हम उस पर भी आज बात करेंगे कि आपने उस आइडिया को कैसे सोचना है, कि व्हाट इज द राइट आइडिया इन द मार्केट, लेके हम जिसको लेके मार्केट में जाएंगे और हमें पता लगेगा कि हमने कौन सा बिजनेस करना है। देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस राइट नाउ, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा बिजनेस से रिलेट करते हैं कि एक तो अभी हमने बात की है कि आपकी करियर पाथ के अंदर आपने किस तरह एक सबसे बड़ी आपने एक मिस्टेक की है, और अनफॉर्चुनेटली मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये हमारा सोसाइटी का ट्रेंड ऐसा बना हुआ है कि हमें स्टार्ट किया जाता है फ्रॉम दी व्हाट, देन हाउ, फिर हम वाई पे आते हैं। लेकिन अब जितने भी सक्सेसफुल लोगों को आप स्टडी करेंगे, दे स्टार्टेड विद द रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस, दे स्टार्टेड विद द वाई। मैंने क्यों डॉक्टर बनना है, मैंने क्यों लॉयर बनना है, मैंने क्यों बिजनेस स्टार्ट करना है। जब आप वाई स्टार्ट करते हैं ना, तो फिर आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं होंगे, आपके अंदर एक सेल्फ मोटिवेटिंग फैक्टर्स जनरेट होते रहेंगे।
क्योंकि आपका गोल बहुत क्लियर होगा कि मैंने ये इसलिए करना है। अभी हम ट्रैक पे जा रहे होते हैं, डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो द थ्योरी ऑफ वाई का कॉन्सेप्ट ये है, ये कॉन्सेप्ट साइमन सिनिक एक ऑथर भी हैं और बड़े अच्छे लीडरशिप स्पीकर हैं। उन्होंने एक गोल्डन सर्कल डिजाइन किया है, दैट इज द थ्योरी ऑफ वाई, कि आप यू शुड स्टार्ट योर करियर, स्टार्ट योर लाइफ विद अ वाई। आपको बिजनेस करना ही नहीं करना है, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, आप वाई स्टार्ट करें। और मैं हमेशा ये बोलूंगा कि इट्स नेवर टू लेट। आज भी, इवन इफ यू आर इन अ फाइनल ईयर, आप आज डिसाइड करें कि आपको आगे क्या करना है। क्योंकि इफ यू वांट टू चेंज योर फील्ड, अगर आपको अपना फील्ड चेंज करनी है, अपना अपना अगर डायरेक्शन चेंज करना है, आप वो भी कर सकते हैं, बट इट शुड बी बैक्ड बाय द थ्योरी ऑफ वाई, कि आपने करना क्यों है वो। एक और हमारे पास वाई का आंसर होता है कि हम बात करते हैं, नॉर्मली टॉक अबाउट दी भेड़ चाल। सुना है ना कि एक मुहावरा है कि भेड़ चाल। भेड़ चाल क्या होती है कि गोइंग विद द हर्ड, के जो मार्केट में इन चल रहा है उस वैगन में आप कूद जाओ और इवेंचुअली कहीं नहीं पहुंच जाओगे। लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि इवन करियर्स के अंदर भी, कि व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन व्हाट इज गोइंग राइट नाउ, लेकिन जब आप 4 साल बाद ग्रेजुएट होंगे, क्या उसके बाद उसकी वैल्यू होगी भी या नहीं होगी। अगर आप देखें कि हमारे पास आईटी का एक बहुत ही जो है समझ लें कि एक रिगरस ट्रेंड आया था, जिसमें एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट, अभी बात कर रहे हैं लेकिन अब एक नेक्स्ट लेवल पहुंच चुका है वो, जब बिल्कुल नया नया आया था कि एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सारे कोर्सेज नए नए जब यूनिवर्सिटीज ने स्टार्ट किए थे, तो लोगों ने फौरन ही जो है ना 4 साल 6 साल के प्रोग्राम में एनरोल करा लिया। अब बाय द टाइम वो 6 साल के बाद मास्टर्स करने के बाद वहां से वो पास आउट हो रहे हैं, तो पता ये लगा कि भाई 14 ईयर्स ओल्ड किड जो है वो यूट्यूब से वही चीज सीख के आपके साथ खड़ा हुआ है। तो ना तो कंपटीशन क्या है, अब उस बच्चे ने कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया, आप जो है वो 25-30 लाख की इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब से उसने तमाम चीज सीखी हैं और आप कंपटीशन में खड़ा हो गया। अब आप ये देख रहे होंगे कि आफ्टर इन्वेस्टिंग 25 लाख रुपीज, 30 लाख रुपीज, आप जो है आपको कम से कम 50,000 की जॉब तो मिले। वो बच्चा एज ए इंटर्न काम कर सकता है, क्योंकि उसने उसी को एक्सपेंस नहीं है, उसकी कोई एज नहीं निकल रही। तो व्हाट यू हैव, तो क्योंकि आपके पास द थ्योरी ऑफ वाई नहीं था, आपने सिर्फ बैंड वैगन पे जंप कर लिया और जो एक भेड़ चाल चल रही थी आपने उसको फॉलो कर लिया है, तो इवेंचुअली यू एंड अप नोवेयर। अच्छा, अब इसको हम करते हैं बिजनेस से रिलेटेड। वी हैव मेनी ऑप्शंस। अगर हम बात करते हैं कि आई बीन टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, आई बीन मेंटोरिंग डिफरेंट स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर कराची एंड पाकिस्तान। उसमें इकरा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के स्टूडेंट्स हैं, बहरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। मैं खुद भी एज ए एंटरप्रेन्योर रह चुका हूँ, मैं भी एज अ अपने मेंटोर से सीख चुका हूँ बहुत सारी चीज़ें। तो whenever I talk about the theory of why, मैं सबसे पूछता हूँ कि तुमने जो पर्टिकुलर स्टार्टअप चूज किया है इससे क्या रीजन था। इफ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन रेस्टोरेंट, इफ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन ई कॉमर्स वेबसाइट, क्यों करना चाहते हो। सर आजकल यही चल रहा है, मार्केट में इन है। अच्छा, नो इशूज। अगर अगर आपने कोई रिसर्च की हुई है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मार्केट में ये इन है, सर मुझे लगा ऐसा, तो इसका मतलब ये आपका पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपकी रिसर्च से बैक्ड होती, मैं कहता यार आपकी थ्योरी ऑफ व्हाई बिल्कुल है, आपने उसकी रिसर्च की है, आपने टाइम लगाया है, यू शुड वर्क ऑन दिस, नो इशूज दैट। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलरली ऑन योर ओन फीलिंग या जो बैंड वैगन भी चीजें चल रही हैं आप उस पर फोकस कर रहे होते हो, तो इवेंचुअली आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने पे हो जाता है फिर। और स्टार्टअप्स का सबसे बड़ा जो एक मसला ये है कि मैं वी डोंट हैव अ प्रॉपर डेटा ओवर हियर इन पाकिस्तान, बट मैं यूएस की बात करूंगा। वहां पर आउट ऑफ 10 स्टार्टअप्स ओनली द सक्सेस रेशियो इज 10%, यानी कि 10 में से सिर्फ एक स्टार्टअप सक्सेसफुल होगा, 90% फेल हुआ है। पाकिस्तान में उससे बुरा हाल है। ठीक है, पाकिस्तान में उससे बुरा हाल है क्योंकि वी डोंट हैव प्रॉपर रिकॉर्ड्स और इस डेटा, इसलिए मैं उसको प्रॉपर आपको बता नहीं सकता कि क्या उसके डायनामिक्स हैं उसके। So, but if you have a theory of why in starting your business, तो आपको गोल बहुत क्लियर होगा। आपको 2 साल तक पैसे नहीं आते, आप उसमें चलते रहेंगे, आपका ट्रैक बहुत क्लियर होगा। If you talk about our ancestors, जो हमारे इस्लामिक हिस्ट्री के ancestors हैं हमारे बहुत सारे, कि जिन्होंने अलजबरा इजाद की, जिन्होंने जो हमारे एजुकेशनल बैकग्राउंड में बहुत सारे, उन्होंने इब्न सीना है, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं जिन्होंने
साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया था, जिनको अब हम एक इंग्लिश नाम से जानते हैं। तो द थिंग दैट दे वर स्टडीइंग एट दैट टाइम, वो उनका प्रोफेशन नहीं था, वो उनका पैशन वाज स्टडीइंग दैट पर्टिकुलर कोर्स। वो अलजेब्रा पे मास्टर्स कर रहे थे या पीएचडी कर रहे थे, जो भी वो काम कर रहे थे उस पर, लेकिन उनका प्रोफेशन वाज अ नान बाई। नान बाई क्या होता है? जो नान लगाता है। तो सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप का रूल ये है कि आपने अर्निंग द मनी, पैसे को पैशन से अलग करना है। पैसा इवेंचुअली आएगा, दैट इज अ बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट क्या होता है? बाय प्रोडक्ट की छोटी एग्जाम्पल लेते हैं। इफ आई एम मेकिंग, लेट्स सपोज कि अगर हम बात करें कि अगर हम ऑयल की अगर कोई रिफाइनरी है और पेट्रोल कहीं या कहीं से बन रहा है, तो पेट्रोल जो है ना वो रिफाइंड एक प्रोडक्ट है। जो उसमें मिट्टी का तेल निकलेगा ना, दैट इज बाय प्रोडक्ट, यानी कि जो बच रहा है वो मिट्टी का तेल है। वो समझ रहे हैं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि जो वेस्ट निकल रहा है वो भी कहीं ना कहीं यूज हो रहा होगा। हर इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है, ठीक है, कि जो दैट इज अ बाय प्रोडक्ट। मैं प्रोडक्शन किसी एक चीज की कर रहा हूँ और मुझे एक एडिशनल कोई चीज मिल रही है जो मैं आगे सेल कर सकता हूँ। सिमिलरली जो अगर जो जो एक्चुअल जो घी बनता है, जो एनिमल फैट से घी बनता है, उसमें उसका जो वेस्ट होता है उससे साबुन बनता है फिर, ठीक है। अब तो उसमें भी इश्यूज आ गए हैं कि उसमें बनाया ना बनाया, वो पहले ही बात बता रहा हूँ, इस तरह हुआ करता था। तो सोप वॉज अ बाय प्रोडक्ट। सिमिलरली जब आप किसी बिजनेस में एंटर हो रहे हैं, तो अचीविंग योर गोल इज योर मेन टारगेट। कि आपने आपने किसी एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे शौक है, अच्छा जरूरी नहीं है कि कॉज जो है वो नेचुरल कॉज कोई हो, कि उसमें कोई सोशल कॉज हो, कि आपने किसी फलाई इदारे के लिए काम करना है। कॉज कैन बी एनीथिंग। मुझे लेट्स से आई एम अ फूडी, मुझे खाने पीने का बहुत शौक है, तो मैं फूड इंडस्ट्री में कुछ करना चाह रहा हूँ, दैट इज माई गोल। वो गोल कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि उसमें कोई ना कोई सोसाइटी या सोशल इम्पैक्ट शामिल हो। गोल कैन बी एनीथिंग। मुझे फूड का शौक है, मैं फूड में काम करना चाह रहा हूँ, दैट इज माई गोल। मुझे खाने के साथ मुझे मजा आता है, मुझे खाने पीने में भी मुझे शौक है इसका। आई एंजॉय ट्राइंग डिफरेंट न्यू थिंग्स, या मुझे डिफरेंट चीजें मिक्स एंड मैच करके नई चीजें मैं इनोवेट करके बनाता हूँ मैं, दैट इज माई पैशन, दैट इज योर गोल। उससे पैसा कमाना इज योर बाय प्रोडक्ट, पैसा मिलेगा। लेकिन अगर आपका प्राइमरी गोल ये हो जाएगा मैं पैसे कमाऊंगा, साथ में मेरा पैशन ही पूरा हो जाएगा, तो वहां पे फिर गड़बड़ हो जाती है। होता क्या है कि आपको एक दो साल में पैसे नहीं मिलते हैं, आपकी या कुछ आगे आपका जो स्टार्टअप है वो जा नहीं पा रहा होता, और यू एंड अप बीइंग वेरी डिप्रेस्ड और डिससेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड, और उसके बाद फिर आप जो है उसको फिर वो चीज़ों को ब्रेक कर जाते हैं, ठीक है। तो हमारा फोकस शुड बी ऑन द पर्टिकुलर गोल जो हमने अचीव करना है, और ये उसी वक्त आ पाएगा जब आप थियरी ऑफ वाई को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। जब आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि व्हाट इज माय वाई इन माय लाइफ, कि मैं लेट्स सपोज कि मेरा पैशन क्या है। बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स के बहुत शौकीन होते हैं। अगर आपको अच्छा खेलना नहीं आता, अगर आपको अच्छा जो है वो आपके पास टाइम नहीं है कि या आपके पास वो स्किल्स नहीं है कि आप अच्छा खेल सकें, यू कैन एंटर इनटू स्पोर्ट्स बिजनेस। आप स्पोर्ट्स वेयर पे काम कर लें, आप स्पोर्ट्स की कोई ऑनलाइन वेबसाइट आप लगा लें, जहाँ पर उसमें एक मीडिया ब्रॉडकास्ट होगा, उसमें न्यूज़ आ रही होगी, हेडलाइंस आ रही होंगी। क्रिक इन्फो के नाम से एक वेबसाइट है, कितने लोग जानते हैं? बिल्कुल। तो उस वेबसाइट पे होता है क्या, सिर्फ इन्फॉर्मेशन आ रही होती है ना, और वो एक मिलियन डॉलर बिजनेस बना हुआ है। तो इट कैन बी एनीथिंग। आप अच्छा जरूरी नहीं है कि अब हम बात करते हैं कि जब पैशन की बात करते हैं, कि लेट्स सपोज कि जैसे मैंने बात की कि स्पोर्ट्स का किसी को बहुत ज्यादा कोई क्रेज है, कि इफ समवन इज इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, तो हमारे जहन में यही आएगा कि हम स्पोर्ट्स में कुछ खेलें, तो ही हम इस फील्ड में आ सकते हैं, वरना हम इस फील्ड में नहीं जाएंगे। देयर आर अ लॉट ऑफ साइट के ऑप्शंस दैट यू कैन गो इनटू द मार्केट। जैसे मैंने क्रिक इन्फो की बात की, कि एक ऑनलाइन वेबसाइट है जो कि सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती है कि अभी इस वक्त क्रिकेट में क्या हो रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर आप रेस्टोरेंट्स की इंडस्ट्री की बात करें, तो फूड पांडा इज वन ऑफ द एग्जांपल। फूड पांडा तो खुद तो कुछ भी नहीं बनाता, बट दे आर फैसिलिटेटिंग दी रेस्टोरेंट्स एंड होम शेफ्स, कि उनके प्रोडक्ट्स को वो डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह वी हैव many online platforms जो कि सिर्फ सिर्फ रेटिंग काम कर रहे हैं। वी हैव अ फेसबुक ग्रुप बाय द नेम सॉर्ट, नाम सुना आप लोगों ने फूड का? तो वो क्या कर रहा है, वो खाना खाना बेच रहा है, कोई कुछ भी नहीं कर रहा। वो उनकी कोई प्रोडक्शन है, कोई सप्लाई है, कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहाँ पे लोग अपने इनपुट देते हैं कि इफ दिस रेस्टोरेंट इज फीजिबल, और ये अच्छा है बुरा है, वो रैंकिंग या उसमें अपने लोग कमेंट्स दे रहे होते हैं। तो इट कैन बी एनीथिंग। आप इंडस्ट्री चूज करें,
उसके बाद देखें कि आपने उसमें आपको अनलिमिटेड ऑप्शंस मिल जाएंगे, इतने ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आपको होगा मैं कौन सा काम करूँ, कौन सा काम नहीं करूँगा, ठीक है। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ व्हाई कि आपने, अच्छा इसी तरह हम एक सक्सेसफुल एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें सवाल मैं भी पूछ रहा हूँ, उसका आंसर मैं फिर इस 10-15 मिनट्स के बाद आपसे लूंगा, क्योंकि ताकि एक साथ मेरे पास सवाल आ रहे हूँ। कि अगर हम बात करें कि आईफोन की हम बात करते हैं, आईफोन जो है वो सबसे, इट्स मोस्ट एक्सपेंसिव सेल फोन इन द वर्ल्ड, ठीक है। अगर आप फीचर्स की बात करेंगे तो नो डाउट उसमें फीचर्स होंगे, लेकिन अगर आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें, इफ अ पर्सन, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल जो कि शायद आप लोग रिलेट आई डोंट नो कर सके ना कर सके, कोई बंदा मार्स से यहाँ पर आता है, उसको नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है, उसके सामने आप रखेंगे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करे वो, ये भाई आईफोन सामने है, एंड्रॉइड सामने है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करो और फोन परचेज करो, कौन सा परचेज करेगा वो? जिसको कुछ नहीं पता, एंड्रॉइड करेगा, क्योंकि व्हेन यू आर जब कंपेयरिंग टू थिंग्स उसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं तो बहुत डिफरेंस है। सो व्हाट एग्जैक्टली आईफोन इज सेलिंग, कि लोग लाइन लग जाती है जब वो लॉन्च करते हैं, कि वो पूरे वो उनके शॉप के बाहर के खरीदने के लिए लोग सामने खड़े होते हैं कि दे आर विलिंग टू बाय द आईफोन्स, ऐसी क्या रीजन है? तो इसी सवाल के साथ मैं आप क्वेश्चंस को ओपन कर रहा हूँ। पहले मैं ऑनलाइन में मौका दे देता हूँ कि अगर इफ समवन हैज क्वेश्चंस ऑनलाइन तो मुझे ऑनलाइन सवाल पूछ ले, और उसके बाद फिर हम फिजिकली जहाँ पार्टिसिपेंट्स बैठे हुए हैं उनसे सवाल पूछूंगा। और पहले मुझे इसका आंसर भी दें आप लोग कि आईफोन जो मोबाइल और जो ब्रांड सेल हो रहा है उसकी क्या वजह है। जी, ओवर टू यू। ऑनलाइन अगर मुझसे कोई सवाल पूछना चाह रहा है इस टॉपिक से तो वो बिल्कुल पूछ सकते हैं, वरना फिर हम फिजिकली यहाँ जो पार्टिसिपेंट बैठे हुए हैं उनसे सवाल पूछेंगे। ठीक है, ओके, ओवर टू यू। फिजिकली यहाँ जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो बताएं कि आईफोन क्यों सेल हो रहा है, और कोई सवाल अगर आगे हो। जी, प्रीमियम प्रोडक्ट बेच रहा है, आईफोन और सेल्फ सेटिस्फेक्शन बेच रहा है। सबसे बेहतरीन चीज जो बेच रहा है वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन बेच रहा है। कस्टमर को प्रीमियम की तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसको लग्जरी और प्रीमियम की से सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है वो उसके लिए प्रोडक्ट है। वो कभी कहता ही नहीं अपनी प्राइसिंग के थ्रू या अपनी ब्रांडिंग के थ्रू कि मैं उन कस्टमर्स को टारगेट कर रहा हूँ जो कि स्मॉल मार्केट में है या फिर जो कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। उसकी ब्रांडिंग इस चीज से रिलेटेड नहीं। वो कहता है हमारा प्रोडक्ट प्रीमियम है, अगर आपको ये प्रोडक्ट लेना है तो आप चाहिए हमारे तक आओगे, हम आप तक नहीं। एग्जैक्टली मेरा सवाल उनके पर्सपेक्टिव से नहीं है, वो तो कर रहे हैं काम, मैं एज अ कस्टमर पूछ रहा हूँ, हम या जो भी लेने जाता है उसके जहन में क्या है, वो क्यों खरीद रहा है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए जाना। सो सेल्फ सेटिस्फेक्शन को और डिफाइन करें ना कि कैसे हो रही है। सोसाइटी में एक्नॉलेजमेंट के लिए जाना। क्लोज, काफी क्लोज हैं आप। जी, और इसमें हमारे पास जैसे हमारा, अगर आई डोंट नो यहाँ पे आवाज आगे आई नहीं आई है, हमारे एक पार्टिसिपेंट है, उन्होंने बताया कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए लोग खरीदते हैं, सोसाइटी में एक्सेप्टेंस आती है। सो राइट नाउ दे आर व्हाट दे आर सेलिंग, अगर हम बात करते हैं तो दे आर सेलिंग सोशल करेंसी। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड सोशल करेंसी, कि वो सेल फोन नहीं बेच रहे, वो सोशल करेंसी बेच रहे हैं। क्योंकि कोई ना कोई हर देखें सोसाइटी में एक पैरामीटर, कोई पैमाना होता है जज करने के लिए, किसी को भी जज करने के लिए। कोई जज करता है बेस्ड ऑन द एजुकेशन कि कितनी डिग्रीज है आपके पास, कोई जज करता है कि बेस्ड ऑन योर अखलाक, कोई आपको जज करेगा बेस्ड ऑन द मनी दैट यू हैव, कोई जज करेगा जो आपके पास मटीरियलिस्टिक चीजें हैं। इन आवर सोसाइटी जो यहाँ पर हो रहा है, वहां पर सोशल करेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि सोशल करेंसी में जज किया जा रहा है कि वहां पर क्या सिनेरियो हो रहा है, कि पीपल आर बाइंग दीज फोन्स जस्ट टू गेट एक्नॉलेज फ्रॉम द सोसाइटी, सर आपने कहा, ठीक है। सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ व्हाई। अच्छा, अब वो उन्होंने कैसे बिल्ड किया? उन्होंने जब सेलफोन बनाने शुरू किए तो सो दे फोकस्ड ऑन why people will be willing to buy our phones, not what। अगर वो फीचर्स पे फोकस करते हैं तो वो व्हाट बोलते हैं कि हम बेच रहे हैं, हमारे पास वो डुअल सिम है, तो हमारे पास अच्छी बैटरी है, तो हमारे पास फलाना चीज़ है, हमारे पास ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, वो एट्रीब्यूट्स गिनवाते हैं, वो व्हाट पे फोकस करते हैं। फिर हाँ, फिर पूछते, फिर वो क्या करते हैं कि बनाते हैं कि डिफरेंट फीचर्स ऑफ फोन, उसके बाद बोलते हैं हम कैसे बेचना है। अगर आप देखें डिफरेंस बिटवीन आईफोन्स एंड दी
जो हमारे पास एंड्रॉयड फोन्स हैं, वो सबसे बड़ा डिफरेंस ये आ रहा है, एंड्रॉयड फोन इज सेलिंग फॉर दी attributes that they have, और जो iPhone is selling for the social currency, और जो Android phones are selling for the attributes that they have, जो भी उसमें characteristics हैं। तो उन्होंने ये पहले से प्लान किया हुआ था कि हमने ये चीज बनानी है और ये हमारे कस्टमर्स होंगे, तो वाई का कॉन्सेप्ट पहले हमने सोचना है, बाद में सोचना है, ठीक है। सो कमिंग टू द आइडिएशन प्रोसेस, अभी हमने पहला सेगमेंट अपने टॉपिक का क्लियर कर लिया है कि आपने जो भी काम करना है उसमें द थ्योरी ऑफ वाई को इंटैक्ट रखना है, और हम सोचना है आप जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। द सेकेंड पार्ट इज द आइडिएशन प्रोसेस। अब ये उन लोगों के लिए है कि इफ यू हैव एन आइडिया बट कंफ्यूज्ड कि यार मैं इस आइडिया को आगे लेके चलूँ या ना चलूँ, उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन ये आता है कि मेरे पास कोई आइडिया नहीं है बट आई वॉन्ट टू डू समथिंग इन माई लाइफ, लेकिन आइडिया नहीं, क्या करें। तो उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी है। कुछ सवाल हैं, अगर आपने उनका आंसर दे दिया, यू विल एंड अप हैविंग द आंसर्स टू योर क्वेश्चंस। इन 2 सवालों का आंसर कि जो मेरे पास आइडिया है, क्या वो आइडिया फिजिबल है या नहीं है, या मेरे पास कोई आइडिया ही नहीं है, मैं आइडिया सोचूं। पहले तो इसके लिए आपने कुछ सवाल दी, वो सवाल ये हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लुक अराउंड इन योर सर्कल, इन द सोसाइटी। आइडिया कैसे, अच्छा सबसे पहले आपने सोचना है आइडिया जनरेट कैसे होता है। बोलते ना यार एक आइडिया आया है मेरे पास, व्हाट इज दैट थिंग जो मेरे पास आइडिया आएगा। उसके लिए हमारे ब्रेन में कुछ एक्टिविटीज रन हो रही होती हैं। सबसे पहले जो इन्फ्लुएंस होता है ना, दैट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द सेल्फ एंड द सराउंडिंग्स। कि अगर मुझे कोई उस सराउंडिंग में मुश्किल पेश आ रही है तो वहीं से मुझे आइडिया जनरेट होता है। कहते हैं ना कि विद एवरी प्रॉब्लम्स कम्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। दैट इज व्हाई पाकिस्तान इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स इतनी हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, दैट मीन्स वी हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व्ड, जिससे हम पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, पेंडेमिक जब आया, कोविड जब आया, जब ये तमाम चीज़ें बंद हो गई, यूनिवर्सिटीज बंद हो गई हैं, जूम का बिजनेस कहाँ से कहाँ पहुँच गया, फूड पार्टनर का बिजनेस कहाँ से कहाँ पहुँच गया, बिकॉज फिजिकली द आउटलेट्स वर क्लोज्ड। सही है। तो जहां पे प्रॉब्लम थी वहीं अपॉर्चुनिटी आई है, वहीं लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए कमाया। कैसे हो रहा है? एक तरफ बिजनेसमैन बोल रहा है कि हमारे पास खाने को पैसे नहीं है, हम तो रोड पर आ गए। एक तरफ वही कुछ बिजनेसमैन है, वो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो टैपिंग द राइट मार्केट गिव्स यू द बेस्ट आइडिया। पहला क्या हुआ कि आपने अपने सराउंडिंग में देखना है। आप मुझे बताएं कि डू यू नो करीम जो है, आप तो उबर ने उसको एक्वायर कर लिया है। करीम जो स्टार्टअप है वो कहाँ पे रजिस्टर्ड है? वो यूएई बेस्ड स्टार्टअप है, ऑल्दो पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स हैं, लेकिन यूएई में वो रजिस्टर हुआ है। बट करीम इज नॉट वेरी सक्सेसफुल इन यूएई। उसकी क्या वजह है? क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम बहुत अच्छा है, तो वो नीड ही नहीं है, हम क्यों इस्तेमाल करें। वहाँ पे उनकी जो ट्रेन का सिस्टम है, इंटरनल जो चल रहे होते हैं, वहाँ बसेस हैं, वहाँ पे टैक्सीज हैं, बहुत अच्छी चल रही हैं, कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है। वाई वुड आई यूज करीम? बट इफ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान, यहाँ पे आप देख लें बसेस क्या हाल है। यहाँ पे आप देख लें हमारी चिंची जो कि अभी तक इलीगल है, वहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा खतरनाक लगता है कि व्हेन पीपल आर ट्रैवलिंग इन चिंचीज, क्योंकि सबसे पहले तो जो बच्चा चला रहा होता है वो तो 12-15 साल का बच्चा चला रहा है, नोबडी चेकिंग कि वो कौन चला रहा है, कौन नहीं चला रहा है उसको। ठीक है, तो यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम था दैट वाज डेवास्टेटेड। इसी वजह से जो करीम और उबर सक्सेसफुल होगा यहाँ पर। फिर डू यू थिंक बाइकिया अगर जाएगा यूएई के अंदर तो बड़ा कामयाब होगा? नोबडी यूज बाइक ओवर देयर, वहाँ गाड़ियाँ बहुत सस्ती हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर करीम उबर तो आ गया, लेकिन स्टिल देयर वाज अ ह्यूज मार्केट जहाँ जो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो पीपल स्टार्टेड रिलाइंग ऑन बाइकिया। सस्ता ऑप्शन है, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैंने खुद बाइक यूज़ किया है, कहीं रश एरिया में जाना होता है मैं बाइक यूज़ करता हूँ। अपनी गाड़ी लेके फंस जाए बंदा, करीब मिल जाए वो भी फंस जाए, बाइक है तो कहीं ना कहीं से बचा देगा वो। और ट्रैफिक का निज़ाम इतना खराब है, तो जहाँ प्रॉब्लम्स थी वहीं सोल्यूशन आया। सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट कि जहाँ पर आप ये सोच सकते हैं, अपने सराउंडिंग में देखें कि किस तरह आप आइडिया जनरेट कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन जनरेट आइडिया। आप देखें क्या इशूज हैं आपके सराउंडिंग के अंदर, आपकी सोसाइटी के अंदर, आपकी अपनी कम्युनिटी के अंदर।
आप वहां जब देखेंगे इश्यूज क्या क्या हैं, ओनली देन यू विल बी एबल टू एनालाइज के क्या आप बिजनेस आइडिया ला सकते हैं। सबसे पहली चीज, ठीक है, आपने अपने सराउंडिंग में देखना है। सेकंड क्या होगा? सेकंड ऑप्शन इज योर पैशन। इफ यू हैव पैशन फॉर समथिंग तो नो वन इज स्टॉपिंग यू, कोई ब्रेक ही नहीं लगेगा। फिर जब पैशन जब होता है तो पैशन आपका, चाहे वो मार्केट में नीड हो ना हो, आप कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे इवेंचुअली। पैशन, अगर आपके पास सराउंडिंग में आप कुछ भी नजर नहीं आ रहा, इफ अच्छा पैशन को पहले आना चाहिए था, मैंने थोड़ा सा उसको वो कर दिया। अगर पहले पैशन है तो पहले पैशन को फॉलो करें, अगर पैशन नहीं है तो फिर हम उस पर जाएंगे, अपने सराउंडिंग में देखेंगे, पहला पैशन आएगा। इफ यू हैव पैशन फॉर एनीथिंग, मैं फिर बात कर रहा हूँ, लोग ये समझते हैं कि जब हम बात करते हैं कि कुछ अपने लिए कुछ गोल तय करो, कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ पैशन आप ढूंढो, तो लोग सोशल कॉस्ट को देखते हैं कि भाई मैं जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट में काम करूंगी या करूंगा, मैं जो है वो यूथ एम्पावरमेंट में काम करूंगा, मैं छोटे बच्चों के लिए कोई ऐसी एनजीओ बनाऊंगा, या मैं हंगर के लिए कोई एनजीओ बनाऊंगा। तो लोग समझते हैं कि पैशन और जो आगे गोल इसी पे हो सकता है, जरूरी नहीं है। इट कैन बी अ प्योरली कमर्शियल एंटिटी। आप कमर्शियली वायबल प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं, कमर्शियली वायबल इंडस्ट्री ढूंढ सकते हैं आप। इफ यू थिंक कि अगर आपका डिजाइनिंग में अच्छा माइंड चलता है, अच्छा जरूरी नहीं कि आपके पास डिग्री है या नहीं है, वो सब बात की बात है। अगर कुछ लोगों के पास वो ऐसा आर्टिस्टिक माइंड होता है, उन्होंने वो पढ़ा भी नहीं होता अपनी आर्ट्स की कोई डिग्री, लेकिन उनका आर्टिस्टिक माइंड होता है, तो यू कैन बी अ फैशन डिजाइनर, यू कैन डिजाइन अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप कंटेंट डिजाइन कर सकते हैं ऑनलाइन, बहुत सारी चीजें हैं। आप बच्चों के कार्टून्स डिजाइन कर सकते हैं। अब तो एनिमेशन पे दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी है। सो यू नीड टू डिसाइड फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज योर पैशन। आपने खुद जानना है, अपने आप से पूछना है क्या। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि बहुत सी जगहों पे हमें ऐसा फील आता है कि वी आर फॉलोइंग आवर ओन पैशन, जबकि ऐसा होता नहीं है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि पैसा कमाना मेरा पैशन है, वो कभी पैशन नहीं बन सकता आपका। पैशन की यू कैन गूगल इट, यू कैन गो इनटू द मार्केट और सर्च इट, और आप देख सकते हैं पैशन की आपको बहुत सारी डेफिनेशन मिल जाएंगी। बट फॉर मी पैशन इज समथिंग दैट यू आर विलिंग टू डू विदाउट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न। आसान अल्फाज में, पैशन एक ऐसी चीज है कि वो आपको ऐसे एक जर्नी पे आगे लेके जा रही है कि आपको कोई रिटर्न नहीं आ रहा है, आप फिर भी किए जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखें कि द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पैशन इज द लव ऑफ आवर पेरेंट्स फॉर देयर चिल्ड्रन। रिगार्डलेस कि वो जितने भी निकम्मे बच्चे हों, जितने भी जो नाफरमान बच्चे हों, कभी भी जो है वो पेरेंट्स के जो दरवाजे, वो अपने आप लोगों के लिए दरवाजे कभी भी बंद नहीं होंगे। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल पैशन की। इसी तरह अगर आप कोई चीज, ऑब्वियसली कोई भी पैशन उसको रीच तो नहीं कर सकता, लेकिन यू कैन फाइंड पैशन इन योर सराउंडिंग, या कोई ऐसी आप सोचें कि आपको ऐसा कौन सा काम है जिसमें बहुत मजा आता है, यू एंजॉय डूइंग इट। किसी को गार्डनिंग का बहुत शौक है। आई एम अमेज्ड टू सी कि लोगों को, बहुत लोगों को कुकिंग का शौक होता है। लोग इसलिए नहीं ट्राई करते यार कि लड़का जो है कुकिंग करेगा लोग क्या कहेंगे, ठीक है, वो लड़का जो गार्डनिंग कर रहा है उसको लोग क्या कहेंगे। तो या खवातीन जो है कोई ऐसी उनको शौक है बाइक्स का, यानी कि वो जो है वो लोग क्या कहेंगे, मैं मुझे बाइक से शौक है। इट कैन बी एनीथिंग। ऐसी ऐसे ऐसा कोई भी एक्शन जिसमें आपको मजा आ रहा है, आपको फायदा, आपको फीलिंग आ रही है यार कि जब रात में सुकून की नींद आ रही है, दैट इज योर पैशन, रिगार्डलेस पैसे नहीं आ रहे। टॉकिंग टू यू गाइज, आप लोगों से मुझे स्टार्टअप मेंटोर करना, स्टार्टअप इंडस्ट्री में काम करना, दैट इज माय पैशन, रिगार्डलेस मुझे कुछ मिल रहा हो ना मिल रहा हो। ठीक है, तो क्योंकि मुझे रात में सुकून नींद आती है कि यार कि मेरे किसी बात के कहने से एटलीस्ट किसी एक बंदे की जिंदगी बेहतर हो गई, वो किसी ट्रैक पर आ गया। अभी भी जो मैं एज अ विजिटिंग फैकल्टी मैंने यूनिवर्सिटी पढ़ाया है, आई बीन टीचिंग इन यूनिवर्सिटी ऑफ कराची एज वेल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में। अभी के स्टूडेंट्स बहुत सारे मेरे से इन टच हैं। रीजन बीइंग कि अभी तो कोई मार्क्स इंटैक्ट नहीं है ना, क्योंकि वो जो स्टार्टअप्स कर रहे हैं आज भी वो मेंटोर के लिए वहाँ आते हैं कि उनके स्टार्टअप्स में सर ये मसला हो गया, मैं आगे क्या करूँ। अगर
ऑब्वियसली आई एम नॉट परफेक्ट एज वेल, मैंने बहुत गलतियाँ की हैं। आई कैन प्रोवाइड यू राइट लिंक्स, मैं वहाँ आपको गाइड कर देता हूँ। अगर कोई टेक्निकली मुझसे पूछता है कि मुझे माइक्रोबायोलॉजी का ये इशू आ रहा है, ऑब्वियसली आई कैन नॉट गाइड हिम और हर, मैं उसको राइट चैनल में कनेक्ट कराऊंगा। तो दिस इज व्हाट मेंटर्स डू, कि आपको वो राइट डायरेक्शन में लेके जाएंगे। ठीक है, तो आइडिएशन प्रोसेस का हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपका आइडिया इतना फीजिबल या वायबल है या नहीं है, उसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, ठीक है, या आपके पास कोई आइडिया ही नहीं है लेकिन लाइफ में कुछ करना है, तो दीज आर टू पॉइंट्स के जो आपने फोकस करना है। द फर्स्ट वन इज फाइंड योर पैशन, कि आपको किस चीज में ऐसा आपको काम में सेटिस्फैक्शन मिल रही है विदाउट हैविंग एनी मॉनेटरी बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इज कि अगर आपको फिर भी कुछ नहीं मिल रहा, स्टिल यू कैन लुक इनटू द मार्केट, अपने आप सराउंडिंग में देखें कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करके हम पैसा बना सकते हैं, जिसको आप सॉल्व, पैसा भी बात की बात है, पैसा बन जाएगा, सॉल्व करके आप लोगों की जिंदगी आसान कर सकते हैं। डू यू नो, मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी कि जब ये बाइक, ये आपका बाइकिया हो गए और फूड पांडा है, जितने भी स्टार्टअप्स हैं ये वाले, करीम हो गए, उबर हो गए, वो सालों उन्होंने लॉसेस बेयर किए हैं। उन्होंने उनका उनका सिर्फ एक गोल था, उनका पैसा कमाना इनिशियल गोल नहीं था, एक गोल था, यार कस्टमर्स को मैं आदत करवा दूं अपने प्रोडक्ट की। उनकी जिंदगी आदत कैसे होगी किसी चीज़ की, हमें आदत क्यों होती है इस चीज़ की? हमें फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ टाइम जब एसीज नहीं थे यहाँ पे, अगर आप बात करें कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, तो उन्होंने इसी उसमें लाइफ गुजारी, ऐसा नहीं हो कि खुदा ना सभी हीट स्ट्रोक में मर रहे हो, तो उसमें लाइफ गुजर रही थी, लेकिन एसीज आए, अफोर्डेबिलिटी आई, लीजिंग आई, गाड़ी को भी सिनेरियो है, उनको लोगों को आदी बनाया। अब पीपल कैन नॉट लिव विदाउट दीज स्टफ, के गाड़ी के बगैर या जो है वो एसीज के बगैर गुजारा नहीं है। क्यों? आपको उसका आदी बना दिया। दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू विद योर स्टार्टअप। क्या आपने स्टार्टअप का हम सोल्यूशन नहीं करते हैं कि यार कि नॉर्मल के स्टार्टअप क्या करना है, हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना लेंगे, वो ऑनलाइन जो है वाटर बॉटल्स है हम वो सेल आउट कर लेंगे और जो हमारा स्टार्टअप हो गया। ठीक है, वो मैं मना नहीं कर रहा, स्टार्टअप है बिल्कुल, लेकिन इफ यू वांट टू स्टैंड समवेयर, या आप चाहते हैं कि आपका स्टार्टअप 2-3 साल के बाद भी वो अपने पैरों पे खड़ा रहे, क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट अगर हम की बात करें ना, तो इन्वेस्टमेंट आपको मिल जाएगी आपको सिर्फ धक्का स्टार्ट करने के लिए, उसके बाद सारी जिंदगी तो आपने गुजारनी है ना। 2-3 साल आप इन्वेस्टमेंट आप चल लेंगे, लेकिन उसके बाद की लाइफ कैसे गुजारेंगे? अगर आपके प्रोडक्ट का कोई आदी नहीं हुआ, नोबडी इज फीलिंग वेरी हैप्पी टू यूज योर प्रोडक्ट, वो सिर्फ उनकी लाइफ में एक एड ऑन है, तो यू वोंट एंड अप एनीवेयर। इवेंचुअली जो है वो आपका स्टार्टअप चलेगा, लोग बातें करेंगे, फिर आपका कहीं ना कहीं फेड आउट हो जाएंगे आप लोग। तो एज अ सक्सेसफुल स्टार्टअप बनाने के लिए सबसे पहले आपने थ्योरी ऑफ वाई को समझना है, कि पहले वाई आप अंडरस्टैंड करेंगे, वाई को आपने जब अपने अंदर इनकलकेट कर लिया है, उसके बाद फिर आप आएंगे एडिशन प्रोसेस पे, अपने आइडिया को इवैल्यूएट करें। अच्छा, और जो लोग आइडिया की फेज से आगे निकल चुके हैं वो अपने स्टिक करें अपने आइडिया पे। ये उन लोगों के लिए है कि हु आर कंफ्यूज्ड अबाउट देयर आइडिया, ये कोई आइडिया ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि पर्सनली मैं ये समझता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टिंग एन ओन बिजनेस या स्टार्टअप कल्चर जो है वो कोई एजुकेशनल डिग्री नहीं है, इट्स अ लाइफ स्टाइल, इट्स अ माइंडसेट। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ माइंडसेट। आज मैं किसी भी वजह से जॉब कर रहा हूँ, स्टिल आई जो एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट है वो इंटैक्ट है उस जॉब के साथ भी। तो बिजनेस स्टार्ट कर लेना या जॉब कर लेना हल नहीं है, ये ऑप्शंस है आपके पास। ठीक है, द राइट या फाइनल डिसीजन क्या होगा कि आपने, आपका माइंडसेट क्या है। यू शुड हैव एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट, उसके बाद आपको पता लगेगा कि आपके अंदर वो चीज इनकलकेट होगी, वो चीज आपकी लाइफस्टाइल आएगी, फिर आप जो काम करेंगे ना वो आप ऑटोमेटिकली थ्योरी ऑफ वाई आएगी, ऑटोमेटिकली आप एडिशन प्रोसेस पे आएंगे। एनी क्वेश्चंस, कोई सवाल? कोई सवाल नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। जब कोई सवाल नहीं होता है तो हमारे टीचर्स बोला करते थे, हम भी उसको कंटिन्यू करते हैं, उसका मतलब एक ही होता है, या तो सब समझ में आ गया या तो सब सर के ऊपर से गुजर गया। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, इसलिए आप खामोश हैं, वरना तो दूसरी वजह भी हो सकती है। एनीवेज, नाउ द थर्ड सेगमेंट ऑफ आवर प्रेजेंटेशन इज द लीन स्टार्टअप। हमने, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमने पहला काम क्या किया? द थ्योरी ऑफ वाई।
अब दूसरा काम क्या किया, आइडिएशन प्रोसेस, आइडिया को इवैल्यूएट किया। अब हमारा जो एक कंफ्यूजन वाला, देखिए विद अ कंफ्यूज्ड माइंड आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब भी आप कहीं जाएंगे आप कंफ्यूज होंगे, यार मैं करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, हर दफा सवाल रहेगा। हमने कंफ्यूजन को बंद कर दिया, लॉक कर दिया कंफ्यूजन वाले कॉन्सेप्ट को, या उसको हमने सवाल को बंद कर दिया। अब हम आ गए ऐसे पॉइंट पे कि हमें एक आइडिया समझ में आ गया, वी आर श्योर व्हाट टू डू इन आवर लाइफ। हमें समझ में आ गया है कि हमें किस कॉन्सेप्ट पे काम करना है। हमने एक जॉनरे जो एक हमारा फील्ड ऑफ स्टडी है या हमारा एक जो एक इंडस्ट्री है वो हमने चूज कर लिया। अब हमने सोचना है करना क्या है, सोच तो लिया हमने। यहाँ तक बहुत से लोग काम कर लेते हैं क्योंकि इसमें आपको मेहनत नहीं लगी, यहाँ तक कोई मेहनत नहीं लगी, आप घर बैठे ही सारे काम कर रहे हैं, अभी तक सिर्फ अपने आप से जंग लड़ रहे हैं। अब काम आएगा मेहनत का, यहाँ पे आके बहुत सारे लोग पिछड़ जाते हैं, फिर बोलते हैं यार कि मैं तो जॉब कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी फैमिली है, 20 बच्चे हैं, कैसे करूँ काम को, फाइनेंशियल इशूज हैं। फिर आपके एक्सक्यूज, ये अब आपके पास एक्सक्यूजेस का पहाड़ खड़ा हो जाएगा आगे। सो द कॉन्सेप्ट इज द लीन स्टार्टअप। ये एक ऑथर है एरिक रीस, आप उसको गूगल कर सकते हैं, उसकी एक बुक है द लीन स्टार्टअप, बड़ी ज़बरदस्त बुक है, आप उसको आई वुड रिकमेंड कि आप उसको पढ़ें, द लीन स्टार्टअप को, और ये आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको बड़ा चेंज करेगा। तो उसको मैं एक शॉर्ट में एक जो है दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात है कि एक सम अप करके उस चीज़ को आगे लेके चलते हैं। लीन का मतलब क्या होता है पहले हम समझेंगे। लीन का मतलब क्या है? लीन इज एलिमिनेटिंग द वेस्टेज। आसान अल्फाज में लीन का मतलब क्या है? एलिमिनेटिंग द वेस्टेज। अब द कॉन्सेप्ट ऑफ लीन कैन बी अप्लाइड एनीवेयर इन योर लाइफ। सबसे पहले इसको आप अपनी लाइफ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ऑन योर फिजिकल बॉडी। अगर आप एक एक्स्ट्रा, अगर फैट को आप लूज करना चाह रहे हैं थ्रू एक्सरसाइज, थ्रू डाइटिंग, थ्रू डिफरेंट प्रोग्राम्स, तो आपकी लीन बॉडी होगी। ठीक है, आपका अगर आप अपने टाइम को बड़ा ही अच्छी तरह इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और आप उसको स्केड्यूल कर रहे हैं, जो इंशाल्लाह हमारे एक 25 को हमारा एक और सेशन होने वाला है टाइम मैनेजमेंट पे, ठीक है, तो वो भी इसमें बढ़ेंगे आप। अगर आप टाइम मैनेज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने स्केड्यूल को द लीन स्केड्यूल बना रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस। आई एम नॉट श्योर कि किस किसने ये चीज़ें पढ़ी होंगी, जैपनीज कॉन्सेप्ट हैं ये। तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि प्रोडक्शन के अंदर बहुत वेस्टेजेस होती हैं। ठीक है, आसान सी मिसाल है जो सब रिलेट कर पाएंगे। अगर आप देखें आजकल फिश का खाने का जो है वो सीजन आ चुका है और एवरीबडी इज बाइंग फिश, या कोई घर पे लाते हैं, या आप देखा होगा एक फिश होती है, तो जब उसको उसकी वेस्टेज निकालते हैं तो 40% फिश बच जाती है, बाकी सारा कुछ जो है ना वेस्टेज में चले जाता है। ठीक है, तो एक्चुअल जो कॉस्टिंग जो होनी चाहिए ना वो आपकी 40% होनी चाहिए, 60% तो वेस्टेज निकल गया आपका। हम कॉस्टिंग, लेट्स सपोज कि आपका फिश का बिजनेस है या आप फिश पका के बेचना चाह रहे हैं और आप जो है ना बोनलेस फिलेस बेचेंगे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ खाली मैं। ठीक है, तो आपने कॉस्टिंग कर ली कि भाई मुझे 1000 रुपये केजी फिश मिल रही है, अब सारी कॉस्टिंग आपने उस पर कर ली। अब आप पूरी वेस्टेज निकाल रहे हैं, आपने कोई कॉस्टिंग नहीं कर रहे आगे, बस आपने कर चुके हैं ऑलरेडी कॉस्टिंग। अब आप जब चीज़ें बेचने शुरू कर रहे हैं आपको प्रॉफिट ही नहीं आ रहा, आप बोले यार इस फिश की इंडस्ट्री में प्रॉफिट ही नहीं, भाई आपने वर्किंग सही नहीं की ना, द लीन कॉन्सेप्ट आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया। सॉरी सॉरी ओके, तो आपने क्या किया, आपने सिंपली फिश बाय की, कॉस्टिंग की आपने की, उसके हिसाब से आपने वेस्टेज निकाला, उसको आपने काम शुरू कर दिया। योर एक्चुअल कॉस्टिंग शुड बी ऑफ 40% पे, कि मुझे 1000 रुपये खाली मुझे मिल रहा है 400 ग्राम्स, इसका मतलब हुआ कोई लगभग 2200 का मुझे पर केजी कॉस्ट करेगा, तो मैं कम से कम 3000 रुपये बेचूं। फेयर इनफ, बेसिक कॉस्टिंग कर रहा हूँ मैं, अभी बाकी चीज लेबर कॉस्ट पे किसी चीज पे नहीं जा रहा हूँ मैं बेसिक कॉस्टिंग कर रहा हूँ मैं। आप कॉस्टिंग करे बैठे हैं 1500 रुपये केजी बेच रहे हैं, आपको लॉस ही होगा। इसी तरह स्टार्टअप इंडस्ट्री के अंदर जब आप आते हैं तो पहले तो आप लीन को अंडरस्टैंड कर लिया आपने कॉन्सेप्ट को। ठीक है, अगर हम स्टार्टअप की बात करें, कोई भी आपने इनिशिएटिव लिया अपने बिजनेस का, दैट कैन बी अ स्टार्टअप। ठीक है, तो लीन स्टार्टअप का मतलब ये हुआ कि आपने स्टार्टअप के अंदर से वेस्टेज निकाल लेनी है। अब इसका मतलब क्या है, जब हम बात करते हैं द लीन स्टार्टअप के बारे में, तो सबसे बड़ा जो एक डिलेमा है इन स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस इज नोबडी इज
स्टैंडिंग ऑन योर हेड कि डंडा ले खड़ा हुआ है कि यार कि कम तुमने ये काम करना है, कल तुमने काम नहीं करना है, ये सेशन अटेंड करना है, ये सेशन अटेंड नहीं करना है, कोई फोर्स नहीं कर रहा आप 12 बजे उठे हैं दोपहर के, रात में आप सुबह के 5 बजे सोए हैं, नोबडी इज आस्किंग यू व्हाट आर यू डूइंग इन योर बिजनेस, कोई नहीं पूछेगा आपसे, ऐसा ही है, ठीक है। इससे बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अच्छा, अब करने को बहुत सारे काम हैं, माइट बी पॉसिबल कि आप जब आप जैसे सब स्टूडेंट से, मैं स्टूडेंट लाइफ की एग्जाम्पल लूंगा कि आपके पास ऑप्शंस है कि आप ये सेशन अटेंड करते हैं, या आप सो जाते हैं, या आप क्लास बंक करके हलवा खान चले जाते हैं, या आप जो है वो कुछ भी नहीं करते, बाहर बैठे रह जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है। तो आपकी टीचर ने, बहुत से लोग खुद से आए होंगे, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, आपको मैं किसी को, मैं नो ऑफेंस, मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ, कि वो बाउंड किया, पाबंद किया कि आप इस सेशन अटेंड करें, इसलिए आपकी चीजें ट्रैक पर चल रही हैं। बट इफ यू आर स्टार्टिंग एन ओन बिजनेस, ठीक है, आपकी अपनी कंपनी है, आप यहाँ से ग्रेजुएट हो चुके हैं, अभी आप कोर्स अटेंड करें ना करें, कोई नहीं पूछने वाला आपसे, ना इस कोर्स से कोई पैसे मिलने वाले हैं आपको कि भाई आप अटेंड करेंगे, कोई आपको मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा। दो चीज़ होंगी, आपको एक तो लर्निंग मिलेगी, एक द राइट नेटवर्क मिलेगा। अभी तो कोविड की वजह से हम खुद लिमिट कर रहे हैं, हमने आउटसाइडर्स को अलाउ नहीं किया है, लेकिन हमारे पास आउटसाइडर्स भी आते हैं, बिजनेसमैन भी आते हैं, तो नेटवर्किंग होती ऐसे उसमें बहुत सारे कोर्सेज मुझे खुद आते हैं, मैं खुद ट्रेन कर रहा हूँ, तो मैं जाता हूँ अटेंड करने के लिए, क्यों, नेटवर्किंग होती है, लोगों से मिलने का मौका मिलता है। तो इसी तरह आपके बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो आपको उसमें वेस्टेज एलिमिनेट करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए, ये तो बहुत ही ब्लैक एंड वाइट क्लियर है कि यार कि क्लास बंक करके जाना और क्लास अटेंड करने में ब्लैक एंड वाइट क्लियर है कि कौन सा नुकसान है, कौन सा फायदा है। लेकिन देयर आर सम ग्रे एरियाज व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस, ठीक है। आपके पास लेट्स सपोज 1 लाख रुपए, अब 1 लाख रुपए सब कुछ तो नहीं हो सकता, आपको ट्रेनिंग भी अटेंड करनी है, आपको बिजनेस रजिस्टर भी कराना है, आपको मार्केटिंग भी करनी है, आपको कोई बंदा भी शायद हायर करना नहीं करना है, तो इसमें से कौन सा काम करना है उस लिमिट पैसों में, दैट इज व्हाट लीन स्टार्टअप इज ऑल अबाउट, एलिमिनेटिंग द राइट वेस्टेज। आप एज अ स्टार्टअप ओनर या एज एन बडिंग एंटरप्रेन्योर, आपको नहीं आइडिया हो रहा होता यार कि मेरे पास लाख रुपए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बंदा हायर कर लेता हूँ, शायद उसकी नीड ना हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं मार्केटिंग कर देता हूँ 1 लाख की, उस वक्त उसकी नीड ना हो, उस वक्त उसकी नीड हो कि अपने आप प्रोडक्ट को और थोड़ा सा उसको पॉलिश करें, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं जो है ये कि कहीं स्पॉन्सर कर देता हूँ मैं, और मेरा कहीं लोगो लग जाएगा, शायद वहां से आपको वो रिटर्न ही ना आए, तो वो राइट डिसीजन क्या लेना पड़ेगा, दैट इज द लीन स्टार्टअप। तो लीन स्टार्टअप एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आया है कि जिससे आप खुद अपने बिजनेस में रिगार्डलेस ऑफ एनी फील्ड यू कैन आइडेंटिफाई कि व्हाट इज द वेस्टेज एट द स्टार्टिंग फेज ऑफ योर स्टार्टअप, कि कौन से काम करने हैं आपको एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस। हमें आइडिया हम सोच लिए, अब फौरी तौर पर क्या करना है। एक ट्रेडिशनल, अच्छा यहीं पर डिफरेंस आएगा एक ट्रेडिशनल बिजनेस का और स्टार्टअप का। ट्रेडिशनल बिजनेस में और स्टार्टअप में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि द ट्रेडिशनल बिजनेस ये कहता है कि मुझे मेरे पास एक आइडिया है रेस्टोरेंट स्टार्ट करने का, तो मैं क्या करूंगा, पहले एक जगह कोई रेंट पे देखूंगा, पहले घूमूंगा पूरे शहर में कि मुझे कोई जगह मिल जाए, उसको मैं रेंट आउट करूंगा, उसका रेंट डिपॉजिट पे करूंगा, उस जगह को फर्निश करूंगा, इक्विपमेंट हायर वो मैं जो है वो परचेज करूंगा, शेफ हायर करूंगा, कैशियर हायर करूंगा। अभी तक मेरी कोई 50 लाख की इन्वेस्टमेंट लग चुकी है, अभी तक बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया मैंने। अब मैं स्टार्ट करूंगा, देखूंगा मार्केट में मेरी नीड है या नहीं है। तो 50 लाख रुपए खर्च करने के बाद मुझे पता लगा है कि मैं जो प्रोडक्ट लेकर आया हूँ बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन इस मार्केट में नहीं चलने वाला। इस मार्केट में तो एक्सवाइजी चीज की नीड थी, मैं ये लेकर आ गया, ठीक है। फिश की अगर हम बात करते हैं तो फिश इज ए एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, ठीक है। तो हर मार्केट होते हैं, ठीक है। तो वो अगर आप बोलेंगे नहीं मैं मीजान का ऑयल यूज करूंगा करूंगी, और उसके बाद मैं फिश भी जो है ना वो रेड स्नैपर और मैं जो पॉम्फ्रेट की नीचे बात ही नहीं कर रहा है, तो फिर आप कैसे, ठीक है। तो आपने जो है लिया, इस आप सेम कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप इन हो गए तो हाउ कैन यू अर्न प्रॉफिट, या अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर आप बोलेंगे यार फिश की इंडस्ट्री प्रॉफिट ही नहीं है, बहुत ही खराब है। फिर आप ब्लेम करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स को, या ये तो बिजनेस बिजनेस में पैसे ही नहीं लगा। आप लोगों को फिर क्या क्या बोलेंगे, बड़ा नुकसान है इसके अंदर। और ऐसे ही लोग आपको मिलेंगे बहुत सारे जो खुद नहीं कुछ नहीं कर, अपने पर्सनल गलतियों की वजह से आपको बोलेंगे नहीं नहीं बिजनेस नहीं करना, ये फलाना चीज नहीं करना।
जो खुद नहीं कर पा रहे हो। सो आपने तो कॉन्सेप्ट क्या है लीन स्टार्टअप का? कॉन्सेप्ट कहलाता है, द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड MVP, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट, जिसको आप आसान अल्फाज में कह सकते हैं प्रोटोटाइप, और आसान अल्फाज में डेमो। डेमो सबको क्लियर होगा ना? उस स्टार्टअप लैंग्वेज में नाम ये होगा MVP, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट, प्रोटोटाइप या डेमो। नामों में मत जाए, नाम सीखने पहले बैठेंगे कि भाई कि आप अपने प्रोडक्ट को इतना तैयार कर लें कि वो मार्केट में दिखाने काबिल हो जाए। वो फुली ऑपरेशनल नहीं है, वो मार्केट में दिखाने काबिल हो जाए कि इस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है भी या नहीं है। जो ये आपको एक साइकिल नजर आ रहा है, ये साइकिल यही है, बिल्ड MVP। आपने अपना प्रोडक्ट बनाया या कोई सर्विस बनाई, आपने बेसिक से बनाया कि इफ यू आर, इसको एग्जांपल शेयर कर लेते हैं जिससे सब रिलेट कर सकें। लेट्स सपोज के you are willing to start a business जिसमें you are ट्रेनिंग कंपनी खोलना चाह रहे हैं। क्या आप बोलेंगे यार ट्रेनिंग का बड़ा ट्रेनिंग कंपनी खोलता हूँ मैं। ट्रेनिंग की वैसे आप देख रहे हैं क्या, कासिम अली शाह भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, सारे पेड ट्रेनर्स हैं वैसे। उमर जालिया वाला के भी बड़ा नाम है स्कूल ऑफ लीडरशिप का, ये लोकल ट्रेनर्स हैं। इसी तरह अगर आप इंटरनेशनल चले आए तो यू हैव साइमन सिनिक, ही इज अ पेड ट्रेनर, बहुत हैवी आपसे पैसे लेते हैं आप लोग, आपसे वो लोग। और द लीन स्टार्टअप में एरिक रीस हैं। तो बकायदा ये लोग, इनका ब्रेड एंड बटर यही है, इसलिए कर रहे हैं कि वो काम ही कर रहे हैं दिन भर और कुछ भी नहीं करते, वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आप बोलते हैं मैं ट्रेनिंग कंपनी खोलता हूँ, यार कि मैं ट्रेनर्स को मैं ऑनबोर्ड ले लूँ, उनको कुछ पैसे भी दे दूँ, मैं जो है अच्छी सी वेबसाइट बना लेता हूँ, सारे आप काम कर रहे हैं। लीन स्टार्टअप भी कहता है कि आपने एक ऐसी चीज बनाई जिसमें कोई खर्चा नहीं हो रहा, आपने फ्री ऑफ कॉस्ट, सही है, वेबसाइट भी नहीं बनाई, उसको आपने थोड़ा सा लोगों में शेयर किया अपने सर्कल में, और आपने लोगों को कॉल्स की, लोगों को मैसेज किया, आपने बताया कि भाई मैं ट्रेनिंग कंपनी खोल रहा हूँ, उसमें ये एक्सपायरी ट्रेनर आ रहे हैं जो जिनसे आपकी बहुत सी बातचीत है, आपने उनको बुला लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी आ रहे हैं, वो भी कुछ आपसे चार्ज नहीं कर रहे हैं। आपने चेक किया कि भाई कि क्या इसमें मार्केट है भी नहीं है, क्या जो मेरी ऑडियंस है वो इसमें इंटरेस्टेड है भी या नहीं है। तो आपने एक प्रोटोटाइप रन किया, आपने छोटा सा इवेंट कराया, आपको रिस्पॉन्स अच्छा आया, आपने उसको फिर मेजर किया। देन यू मेजर इट। मेजर कैसे करेंगे? अभी हम आपसे जो जितने भी वो ले रहे हैं, अटेंडेंस ले रहे हैं, पास ऑनलाइन अटेंडेंस भी आ रही है, उसका मकसद ये है कि हमें पता लगे कितने लोग अटेंड कर रहे हैं, व्हाट इज देयर बैकग्राउंड, ताकि हम नेक्स्ट टाइम जो हम पिच कर रहे थे जो इंटरेस्टेड ही नहीं है, हम पिच नहीं करेंगे। हम स्पेसिफिकली कॉमर्स के स्टूडेंट्स को, स्पेसिफिकली जो हमारे स्टूडेंट्स साइकोलॉजी के जो इंटरेस्टेड है। सो दिस इज हाउ यू मेजर दी एनी ट्रेनिंग। उसके बाद क्या करेंगे, फिर आप लर्न करेंगे, यू लर्न फ्रॉम द डेटा दैट यू हैव कि भाई इस ट्रेनिंग में हमें इतनी ऑडियंस आई, इसमें इतनी ऑडियंस आई, फिर हमें पता लग जाएगा यार कि स्टूडेंट्स जो है ना अभी हम उनको बहुत हाई, क्योंकि उसमें ऑडियंस नहीं आ रही है हमारे पास, हम देंगे बिल्कुल बेसिक लेवल की। क्योंकि वही वाली बात होगी, अगर मैं आपसे बात कर दूं, अब पहले से बात कर लूं कि बिजनेस को आगे बढ़ाना कैसे है, आप बोलेंगे मैंने बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया। आप बात करें बिजनेस बढ़ाना कैसे, आप होगा। तो ये आपने एनालाइज करना है अपनी ऑडियंस को देखते हुए। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम द डेटा दैट यू हैव मेड। आपने लर्न किया, फिर आप वापस बिल्ड करेंगे अपने प्रोडक्ट को। फिर आप नेक्स्ट जो अपनी ट्रेनिंग लॉन्च करेंगे, दैट विल टोटली फोकस ऑन द स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स एंड साइकोलॉजी। मैं सिर्फ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आई नो कि और भी हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं डिफरेंट बैकग्राउंड से, लेकिन आप उसमें फोकस करेंगे, बैकग्राउंड के हिसाब से ट्रेनिंग डिजाइन करेंगे, और फिर आप वापस से मेजर करेंगे, ये साइकिल चलता रहेगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द लीन स्टार्ट। वंस आपके पास अच्छा फीडबैक आ गया है, इस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसको आगे लेके जा सकते हैं, फर्दर आगे बढ़ सकते हैं इसको आप। इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा, वो ये है कि व्हेन यू टॉक अबाउट लीन स्टार्टअप, ये द लीन स्टार्टअप की जो बुक है उसमें ये मेंशन्ड है, ये एग्जांपल अगर आप पढ़ेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे। देयर वाज अ कंपनी इन, एक स्टार्टअप था, कहा कि मैं शूज को ऑनलाइन सेल करूंगा। सेलिंग
ऑनलाइन इज अ वेरी क्रिटिकल थिंग, क्योंकि पीपल टेंड टू बाय शूज बाय गोइंग टू फिजिकल स्टोर्स, क्योंकि उसमें एक तो साइज का इशू होता है, कंफर्ट बहुत ज़रूरी होता है, थर्ड वो कभी कभी आपको अपनी पर्सनैलिटी से मैच नहीं कर रहा होता शूज़ में, आपको शूज़ बड़ा अच्छा लग रहा है, आपने पहन के देखा यार मुझे बहुत ज़्यादा चीप लग रहा है, मतलब या मुझसे मतलब मैच नहीं कर रहा मेरी पर्सनैलिटी के साथ, या होता है। तो शूज़ का ट्रेंड ये है, सेम वर्ल्ड वाइड साइकोलॉजी तो एक ही है ना, सब एक ही इंसान है, वो तो वही रहेगी। उसने कहा कि रिगार्डलेस व्हाट आई एम थिंकिंग, आई एम गोइंग टू डू अ रिसर्च ऑन इट, स्टार्टअप के कॉन्सेप्ट लॉन्च करता हूँ। उसने कुछ स्टोर से बात की, लोकल स्टोर से, और बोला कि भाई आपकी प्रोडक्ट मैं जो है तस्वीर लेके जाऊंगा और मैं जो है ना फिर सेल करूंगा उसको ऑनलाइन। उसने सेम ही काम किया, ऑनलाइन पिक्चर लगाई, उसने मार्केट में चीज़ों को देना स्टार्ट किया, और इवेंचुअली उसने एक छोटी सी अपनी खुद डेवलपर था, खुद वेबसाइट बना ली। तो विदाउट स्पेंडिंग उसने अपनी छोटी सी एक ऑनलाइन शॉप खोली शूज़ की। उसने फिर वो अपने सर्कल में शेयर किया, कोई मार्केटिंग नहीं की, उसके बाद रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ। उसके बाद से एक दो ऑर्डर्स भी आ गए, उसने वो गया, उसने खुद ही जाके शॉप पे गया, बाई किया, साइज लेकर आया, खुद जाके डिलीवर कर दिया विदाउट इन्वेस्टिंग एनीथिंग। करते करते उसके पास ऑर्डर्स आने शुरू हुए, पता ये लगाया कि पीपल आर इंटरेस्टेड इन बाइंग शूज। उसने कहा रिगार्डलेस व्हाट आई एम थिंकिंग, यही सोच रहा हूँ, अभी सोच रहे हैं, लेकिन कस्टमर तो बाय कर रहा है ना। ठीक है? तो वो चीज़ सेल होनी, उसके बाद जो है वो उसने बिजनेस को आगे बढ़ाया। देन ही आस्क्ड फॉर इन्वेस्टमेंट इन फ्रंट ऑफ इन्वेस्टर्स। उसने डेटा लोगों को दिखाया कि सर दिस इज व्हाट वी आई हैव, कि मेरे पास मैंने इतने अरसे में इतने शूज सेल आउट कर लिए, इतना प्रॉफिट कमा रहा हूँ, आर यू विलिंग टू इन्वेस्ट इन माय बिजनेस। वो भीख नहीं मांगी उसने कि इन्वेस्ट कर दो, थोड़ा इन्वेस्ट कर दो, सब के पास जाके कश को लेके खड़े हैं। तो हमारे पास ट्रेंड क्या होता है कि हम जो है ना वो हमारी अप्रोच पुश अप्रोच होती है। पुश अप्रोच पुल अप्रोच में क्या डिफरेंस है कि पुश अप्रोच क्या है कि एक चीज़ के पीछे आप लोगों के पड़े कि हाँ भाई ये हम इन्वेस्टमेंट कर दो, हमें इन्वेस्ट दे दो। पुल अप्रोच क्या है, आई एम आर यू विलिंग टू इन्वेस्ट, मेरे पास और भी लोग खड़े हुए लाइन में। ठीक है, उसको उसने इन्वेस्टमेंट रेज की, जेपोस शूज के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो राइट नाउ of the top startups that is earning millions of dollars, और वो अच्छा बिजनेस खड़ा हुआ है। मुझे आई डोंट रिमेंबर द नंबर्स, मैंने काफी से पहले पढ़ा था कि कितने कमा रहा है वो, लेकिन वो बड़ा अच्छा बिजनेस कर रहा है। सो व्हाट ही डिड कि उसने द लीन स्टार्टअप कॉन्सेप्ट पहले बिल्ड किया, वेबसाइट बिल्ड की, लोगों उसने सप्लाई चेन बिल्ड की, शूज को अपलोड किया। उसने उसके बाद क्या किया, लोगों को बोला कि खरीदना है खरीदो आके, लोगों ने खरीदा, डेटा उसके पास आया, लोग सेटिस्फाइड है, उसने उसे लर्न किया, वापस से किया, करते 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 उसने इन्वेस्टमेंट रेस की और आगे काम कर रहा है। ठीक है, द लीन स्टार्टअप कॉन्सेप्ट अगर और आसान करते हैं तो वो ये है, वो ये कहता है कि गेट योर फर्स्ट 10 to 100 कस्टमर्स विदाउट एनी कॉस्ट। अगर पहले 10 कस्टमर जो आपके घर वाले, आपके दोस्त, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो बाहर वाले क्यों आएंगे आपके पास? अगर जो आपको जानता है वही आपसे, तो बाहर वाले तो बहुत बात की बात है ना, बाहर तो बहुत ही कट शॉर्ट कंपटीशन है, आपके कंपीटिंग प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा लास्ट टाइम मैं रिपीट कर रहा हूँ, कुछ हमारे ऑडियंस में नए स्टूडेंट्स भी हैं, उसमें ये कि जब हम मार्केट एनालिसिस करते हैं, अच्छा इसमें बड़ा एक जो कि आपको शायद बुक में नहीं मिलेगा आपको, वो ये है कि व्हेन यू आर बिल्डिंग योर एमवीपी, आप लोगों से पूछते हैं कि आर यू इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस मास्क, इज ब्रीदेबल मास्क, आपको अच्छी इसमें ऑक्सीजन आती है, येट कि ये जो है बड़ा ही जो है वो बैक्टीरिया से फाइट करता है, क्योंकि इसमें मैंने जो फैब्रिक यूज़ किया है वो एंटी बैक्टीरियल फैब्रिक है, और इसके जो ये स्ट्रेप्स हैं दैट आर वेरी कंफर्टेबल, कि आपको कान के जो एंड में दर्द नहीं होगा, और इस तरह मैं लाइन लगा दूँ आपको चीज़ों की, बहुत सारी प्रोडक्ट है कि आर यू विलिंग टू, तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो ये फेस कर रहे हैं वो हाँ बोलेंगे। ठीक है, बोलेंगे हाँ हमने यूज़ करना है, बट इफ आई एड अ प्राइस टैग विद दिस मास्क, कौन बाय नहीं कर रहा है। जब हम बात करते हैं कि एमवीपी प्रोटोटाइप की, तो उसका मतलब ये होता है कि आपने रियल लाइफ ट्रांजेक्शन करवानी है, पूरा एक्सपीरियंस करवाना है। लेट सपोज कि अगर हम शूज की बात करें, अगर हम मैं मुझे तो मैं क्या करता, हम किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मुझे बोलता था, मैं बोलता कि यार कि सबसे पहले तो मुझे मैसेज आता कि किसी जाने वाले का, यार तुम शूज ऑनलाइन सेल कर रहे हो, तो व्हाट्सएप पे मुझे भेजता पहले,
अच्छा हाँ तो मेरी शूज चाहिए, मैं उसको ये नहीं बोलूंगा तुम वेबसाइट पे जाओ, तुम चाहिए, मैं बोलूँगा कौन सा वाला चाहिए, अच्छा एक काम करो यार हम चलेंगे चाय वाय पीते हुए ना, हम शूज बाय करते हुए आ जाएंगे, उसको मैं लेके जाऊंगा शूज बाय करते हुए आ जाऊंगा, तो वो तो कॉन्सेप्ट ही फेड आउट हो गया ना, समझ रहे हैं। अब मैंने देखा कि वो शूज उसने वहां से ले भी लिया, सारा काम हो गया, लेकिन जो कस्टमर एक्सपीरियंस है, दैट इज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लीन स्टार्टअप, तो उसका मतलब, और हम पूरे एक जो एमवीपी बात कर रहे हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट की, तो आपने पूरे एक्सपीरियंस 360 डिग्री एक्सपीरियंस उसको प्रोवाइड करना है, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं देनी है आपने उसको, ये प्रोडक्ट तो ऑलरेडी वो, लेकिन क्या वो ऑनलाइन पसंद कर रहा है नहीं कर रहा है, जो वो हैसल है कि वो वेबसाइट पे जा रहा है, फिर वेबसाइट वापस रिफ्रेश हो गई मिसाल तौर पर, कोई कोई मसला है, फिर वापस से जा रहा है वो, फिर वो कार्ट में ऐड कर रहा है, एड्रेस ऐड कर रहा है, तो ये पूरा जो एक्सपीरियंस है क्या वो ये पूरा करने के लिए तैयार है या नहीं है। तो अगर आप एमवीपी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चल रहे हैं और अपने बिजनेस को इसमें इम्प्लीमेंट करें, यू नीड टू ऐड द होल कस्टमर एक्सपीरियंस, बेशक वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हो, लेकिन होल कस्टमर एक्सपीरियंस। फेसबुक का पेज ही हो जाए, अगर आपको वेबसाइट बनानी नहीं आती है, उसको बोलेंगे फेसबुक के पेज पे जाओ, मुझे मैसेज करो, ऑल्दो यू हैव माई नंबर, तो मेरे साथ ही बैठे हो, लेकिन मुझे मैसेज करो, उसको बता रहे हैं। फिर वो 2 दिन का जो वेट है कि मैं जाऊंगा परचेस करूंगा फिर आऊंगा, उसको घर पे डिस्पैच करें, उसको लागे ना, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस, उसको 2 दिन का वेट करना पड़ेगा। तो ये जब पूरा एक्सपीरियंस वो आइडेंटिफाई करेगा, फिर आपको पता लगेगा कि जो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाया है और मैं कस्टमर एक्सपीरियंस को मैंने पूरा गुजारा है इसके थ्रू, कि अब मुझे पता लगेगा कि आइदर दिस प्रोडक्ट इज फीजिबल और नॉट फॉर माय कस्टमर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमने 3 चीजें अब तक कवर की हैं। पहली चीज द थ्योरी ऑफ वाई, हमने वाई को अंडरस्टैंड करना है कि वाई वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। सेकंड, आइडिएशन प्रोसेस। आइडिएशन प्रोसेस क्या है कि आपने आइडिया को इवैल्यूएट करना है बेस्ड ऑन 2 कंपोनेंट्स। पहला योर पैशन या प्रॉब्लम, ठीक है। थर्ड इज द लीन स्टार्टअप। लीन स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ लीन स्टार्टअप इज बेस्ड ऑन एमवीपी, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, कि आपने ऐसी प्रोडक्ट करनी है जिससे आप कस्टमर को एक ट्रेलर दे दें। आप डू यू नो कि जब मूवीज आती, ट्रेलर पहले क्यों आया था? ताकि वो फीडबैक का पार्ट होता है, उसके पीछे पूरी मूवी नहीं बनी हुई होती। अगर आप देखेंगे कोई, अगर आप रिव्यूज पढ़ें, अगर कोई मूवीज हैं तो वो ट्रेलर से थोड़ी डिफरेंट भी जाती हैं, कुछ सीन्स ऐसे होते हैं क्योंकि वो ट्रेलर एनवायरनमेंट में वो हुआ हुआ होता है, शूट हुआ हुआ होता है, बाद में पूरी मूवी मतलब कुछ ना ऑब्वियसली स्टार्ट हो जाए, तो अगर बेस्ड ऑन दी रिव्यूज जो कमेंट्स आ रहे होते हैं वो उससे चेंज भी कर लेते हैं। तो दिस इज व्हाट एमवीपी इज ऑल अबाउट, कि आपने लाखों करोड़ रुपए खर्च कर दिए एक मूवी पे और लोगों से फीडबैक, ट्रेलर के थ्रू फीडबैक होता है। आप ट्रेलर में आपस में बात चल रही है, बाकायदा उनके जो डिजिटल मीडिया के लोग बैठे होते हैं जो कि आपके बीच में ही फीडबैक आपसे ले रहे होते हैं किसी मूवी के बारे में। अगर आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स को वहां भी ये बड़ा कॉमन देखेंगे, ठीक। तो दीज आर 3 मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हम डिस्कस किए। उसके बाद 4 पे जाने से पहले मैं वापस से क्वेश्चंस के लिए, इफ समवन इज विलिंग टू आस्क एनी क्वेश्चंस, तो वो बिल्कुल सवाल पूछ सकते हैं। जी, एनी क्वेश्चंस सो फार? एनी क्वेश्चन सो फार? कोई अपनी अगर आइडिया का कुछ जो कुछ जहन में चल रहा है उसके बारे में कुछ शेयर, मोस्ट वेलकम। जी, okay, now moving on to our next slide. Next slide is your work is your net worth. सुना है आप लोगों ने ये फ्रेज? बड़ा ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है ये। अच्छा, एक सवाल आया है उसको मैं बता भी देता हूँ। ऑनलाइन ही हमारे पास सवाल आया है कि सर बहुत सारे आइडियाज ऐसे होते हैं जिस लॉस हो जाता है, प्रॉफिट नहीं मिलता है,
मिल पाता सब कुछ करने के बाद, जैसे आपने शूज़ की एग्जांपल दी। अच्छा, तो हम हमारे पास सवाल एक ये आया है कि उसमें कि बहुत सारे ऐसे हमारे आइडिया स्टार्टअप होते हैं जिसमें लॉस हो जाता है और प्रॉफिट नहीं आ पाता। सर जो शॉपकीपर होगा वो उस बंदे को कैसे कितना देगा जो ऑनलाइन और ऑर्डर कर रहा है? अच्छा, मैं आपका सवाल रिपीट कर रहा हूँ, शायद मैं क्लियरली समझ नहीं पाया हूँ कि आपने ये सवाल पूछा है कि बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ होते हैं जिसमें लॉस हो जाता है, जैसे आपने शूज़ की एग्जांपल दी है, जो शॉपकीपर्स बंदे को कैसे कितना देगा ऑनलाइन कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, देखिए इसमें अगर आप दो आपने सवाल पूछे हैं, एम आई राइट और रॉन्ग, कि आपने सवाल पूछा है कि लॉस अगर हम काम कर हो रहा है, दूसरा आपने सवाल ये पूछा है कि शॉपकीपर के साथ हम कैसे एग्रीमेंट करें, हम ऑनलाइन बेचने वाले हैं तो उससे हम किस तरह प्रॉफिट मॉडल कैसे तय करें। दो सवाल आपके हैं, ऐसा ही है? ठीक है, तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट और वैलिड सवाल। आजकल ऑनलाइन चीज़ें चल रही हैं और ऑनलाइन लोग काम कर रहे हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल आपने रेज किए हैं। कि पहले सवाल, अच्छा पहले मैं आपके सेकंड सवाल का आंसर देता हूँ, फिर मैं आपका फर्स्ट सवाल का आंसर दूंगा। पहले सवाल ये है कि शॉपकीपर से आप कैसे एग्रीमेंट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो फोर्थ स्लाइड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, योर नेटवर्क इज योर नेट वर्थ। सबसे पहले हमने ये आइडेंटिफाई करना है, जब भी हम कोई बिजनेस या कोई आइडिया स्टार्ट कर रहे हैं तो यू नीड टू हैव। अच्छा, क्वेश्चन रिपीट कर दूं, हमारे फिजिकल ऑडियंस में से किसी ने बोला कि मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूं, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। पहला सवाल इसका मैं भी आंसर देना चाह रहा हूँ, वो ये है कि अगर मैं कोई, स्पेशली फॉर फीमेल एंटरप्रेन्योर्स के जो घर में बैठ के काम कर रही हैं, जो ऑनलाइन काम कर रही होती हैं, तो उनका ये सवाल होता है कि हम सेलर जो हमारे शॉपकीपर्स हैं जो मार्केट में सदर में बैठे हुए हैं या किसी और जगह पे जो होलसेल मार्केट में बैठे हुए हैं, उनके साथ हम डील कैसे बनाएं, क्या प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए ताकि हम कस्टमर को आगे ऐसा अमाउंट को हमसे लोग खरीदें। ये सवाल है, तो आई एम श्योर ये बहुत से लोगों का सवाल बिल्कुल होगा ये। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका जो नेटवर्क शुड बी वेरी स्ट्रांग। अगर आपका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, नेटवर्क में सब लोग, नेटवर्क में कौन कौन आता है, नेटवर्क में हर वो स्टेक होल्डर कि जो आपके बिजनेस से लिंक्ड अप है। होल्डर कौन होते हैं या आपका नेटवर्क कौन होता है कि उस बिजनेस का नेटवर्क है, उस बिजनेस के स्टेक होल्डर्स आपके शॉपकीपर्स, जिससे आप आपके सप्लायर्स, आपके कस्टमर्स, आपके ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट, आपके राइडर्स। लोग समझते हैं कि राइडर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई राइडर्स होल्डर है। आपके बिजनेस का जो फेस है वो राइडर है। जब वो जाता है राइडर आपके कस्टमर, और वहां जाके उसने कोई अगर अनप्रोफेशनल एटीट्यूड दिखा दिया तो आपके वही वही नहीं बोलेगा कि ये XYZ राइडर, वो तो ये बात करेंगे कि ये फलाना कंपनी उन्होंने ऐसा किया है। राइडर आता है तो हम थोड़ी बोलते कि राइडर ने ऐसा किया है, फूड पांडा ने ऐसा किया है, फूड ऑर्डर खराब कर दिया, ठीक है, जबकि उस राइडर की गलती होगी। अगर लेट सपोज के ये बड़ा एक चला हुआ है उसमें कि अगर राइडर ने ना रास्ते में खा लिया, जब आया कस्टमर के पास तो राइडर को तो कुछ पता भी नहीं कौन है, फूड पांडा की बदनामी हुई ना। तो ये बहुत जरूरी है कि ये आप हैं, आपके जो नेटवर्क है आपका इन चीजों का बड़ा ही आपने चूज करे, आपने आपने आइडेंटिफाई करना है। आपके जो, अगर आप ऑन बोर्ड लिया हुआ है तो जो कॉल्स उठा रहे हैं दैट शुड बी वेरी प्रोफेशनल। अगर आप घर से बैठे काम कर रहे हैं और मैं फोन कर रहा हूँ फोन नहीं उठा रहे आप, तो दैट इज अ वेरी अनप्रोफेशनल एटीट्यूड। कि भाई ये ठीक है, आपके घर में इशूज हैं, आपके घर बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, लेकिन जब प्रॉपर बिजनेस, इससे बेहतर ये है कि आप किसी डेडिकेटेड किसी को आप इंटर्न हायर करके उसको फोन पकड़ा दें ताकि उसको रिस्पॉन्स हो जाए। ठीक है, बैक टू द क्वेश्चन कि किस तरह प्रॉफिट मार्जिन सेट करें। सबसे पहली चीज आपने देखनी है दैट इज कि आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि कितना मार्जिन है उस इंडस्ट्री में, उस प्रोडक्ट के अंदर मार्केट का जो प्रॉफिट मार्जिन कितना है। हर इंडस्ट्री का सेट होता है, ये आपने रिसर्च करनी है। लेट्स सपोज इफ आई टॉक अबाउट फूड इंडस्ट्री, तो उसमें जो उसका जो बेसिक जो वो मार्जिन है, ये जो फूड कॉस्ट है, जो एक्चुअल रॉ मटेरियल कॉस्ट है, दैट शुड नॉट एक्सीड 40 to 50%। अगर करेगी
क्योंकि उसके बाद आपके बहुत सारे एक्सपेंस हैं, आपका पे रेंट है, आपका पे, मैं सिर्फ फूड कॉस्ट की, रॉ मटेरियल कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। आइडेंटिफाई दी मार्जिन या प्रॉफिट मार्जिन या जो ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ दैट इंडस्ट्री। मेकअप इंडस्ट्री का बोलते हैं कि आपका जो है ना 400% मार्जिन होता है उसमें आपकी, जो क्योंकि उसमें उसकी खराब होने का रेशो कम होता है। सिमिलरली हम बोलते हैं अगर कोई रियल एस्टेट बिजनेस है उसमें भी बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है उसमें, क्योंकि उसके बायर्स बहुत कम है करता है। सिमिलरली अगर हम बात वेजिटेबल्स की, उसका प्रॉफिट मार्जिन मोर देन 50% होता है। रीजन बीइंग कि वो पेरिशेबल आइटम है, खराब हो जाता है, उसका वेस्टेज बहुत निकलेगा आपका अगर नहीं बिका। ठीक है, इस तरह कपड़ों के अगर आप इंडस्ट्री देखेंगे उसमें मार्जिन कम है क्योंकि वो पेरिशेबल आइटम नहीं है, कल भी बिक जाएगा, खैर हो गई। ठीक है, उसमें आपको लॉस कम है उसमें, क्योंकि हर इंडस्ट्री के उस डायनामिक्स के हिसाब से सेट हुए हैं। वो आपको आप सर्च करेंगे व्हाट इज द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ फूड इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, यही मिलेगा आपको। ये आपको खुद मार्केट आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, देखना बात करनी पड़ेगी। नेटवर्क अगर आपको होगा, आप लोगों से बात करेंगे, आपको ये चीज आंसर मिल जाएगा। ठीक है, फिर आप अगर लेट्स सपोज आपने देखा भाई इस इंडस्ट्री में मार्जिन जो है ना वो लेट्स सपोज 20% है। ठीक है, अब आपने ये करना है कि वो 20% जो मार्जिन है आपने, अच्छा 20% मार्जिन फॉर होलसेलर, ये भी देखना पड़ेगा आपको। सबको डिफरेंस पता है रिटेलर और होलसेलर में? रिटेलर कौन होता है कि जो एंड कंज्यूमर, दुकान वाला या ऑनलाइन सेलर जो होता है। होलसेलर को कौन होता है कि जो रिटेल को बेचता है। अच्छा, इन जिस तरह दुनिया आगे बढ़ रही है और जितने भी इंटरमीडिएट हैं वो खत्म होते आ रहे हैं, अब ट्रेंड ये आ रहा है कि द होलसेलर कैन बी रिटेलर। अब आजकल तो वेयर हाउस से ही ऑनलाइन बेच रहे हैं लोग, अब वो रिटेलर भी है, वो होलसेलर भी है। ठीक है, तो उसके बाद मार्जिन ज़्यादा है खेलने के लिए, उससे अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा फियर्स होता आ रहा है। इसी तरह अगर आप देखेंगे कि अगर हम बात करें स्पेसिफिकली कि तो आपने दो चीज़ें देखनी है। सबसे पहली चीज़ कि व्हाट इज द मार्जिन इन द इंडस्ट्री, फिर आपने देखना है कि होलसेलर का और रिटेलर क्या मार्जिन है, फिर आपने रिटेलर वाले मार्जिन में खेलना है। फिर आपने नेगोशिएट कराना है फ्रॉम दी होलसेलर कि अगर होलसेलर के लिए 40% का मार्जिन है और रिटेल मार्जिन है, दैट मीन्स कि आपके पास रूम है वो 20% प्ले अराउंड करने के लिए, उससे आप निगोशिएट करें। आप उससे बोलेंगे करो, मेरे घर पे डिलीवर करो, मैं तुम्हें जो है 5% अपने छोड़ देती हूँ, ये छोड़ देता हूँ मार्जिन। लेट्स सपोज कि आपका मार्जिन 20% था, लेकिन आप बोलेंगे मैं, मेरे पास कन्विंस भी नहीं है, आप बोलेंगे भाई मुझे 10% मार्जिन काफ़ी है, मैं तुम्हें 30% जो है तो उसका तुम्हारा मार्जिन तुम्हें दे रही हूँ और तुम मुझे घर पर डिलीवर कर दो, तो वो उनसे नेगोशिएट करना पड़ेगा आपको, सर बेस्ड ऑन व्हाट सर्विसेज। Similarly, if you're working in the field of fruits and vegetables, तो उसमें क्या होगा आपका कि उसमें आप बोलेंगे कि भाई के मार्जिन तो वैसे 20% होता है, लेकिन आई एम विलिंग टू गिव अप माई 10%, आप मुझे बाकायदा जो और मुझे उसके केजी के बैग्स बना के दो, मुझे पेटीएम मत पकड़ाओ, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल। तो ये आप उनसे सर्विसेज क्या ले रहे हैं और उस एक्सचेंज में निगोशिएबल हुआ है, और आपने उसकी आगे की आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट क्या है, फिर आपने राइडर को भी पेमेंट करनी है, फिर आपका आपने, अच्छा कॉस्टिंग में सबसे बड़ा मसला क्या होता है, स्पेशली द फीमेल टीचर्स दैट आर वर्किंग राइट नाउ, क्या होता है कि हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ होता है कि जो एक्चुअल प्रोडक्ट कॉस्ट है उस पर होता है। वी आर यूजिंग एट आवर होम, हम उसको नहीं लिखते हैं कि द इंटरनेट वी आर यूजिंग, ठीक है, द इलेक्ट्रिसिटी दैट वी आर यूजिंग, हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं, अपना टाइम उसको हम कैसे नहीं करते हैं। मेंशन करनी है कि भाई मेरा जो है एक दिन में लेट्स सपोज के 100 रुपए का मेरा इंटरनेट यूज होता है, बिजली का अगर मैं लगाऊं तो उसको मेरी जो है 100-200 रुपए यूज होती है, दैट मीन्स के पर डे मेरी 3 कॉस्ट है। अगर मैं 10 प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ या बेच रही हूँ तो 30 रुपीज पर कॉस्ट तो मेरी आ गई है, उसको ऐड करें। आप प्रॉफिटेबल कब होंगे? या अगर आप जो है किसी फ्रीजर्स यूज कर रहे हैं, फ्रिज यूज कर रहे हैं, और कॉस्ट बढ़ जाएगी फिर आपकी, उसकी जो हैंडलिंग कॉस्ट है, घर पे आपने रखा है वो सारा जो आपने फ्रीजर का बिल आ रहा है, फ्रीजर की मेंटेनेंस है, तमाम चीजें उसकी कॉस्ट लगाए ना। ठीक है, तो इसका कोई एक नहीं है, जिस तरह हमारे पार्टिसिपेंट ने पूछा है कि मार्जिन क्या होना चाहिए, डिपेंड करेगा आपकी तमाम इस वर्किंग पे कि व्हाट इज द मार्जिन इन इंडस्ट्री, व्हाट इज योर कॉस्ट, फिर उसके बाद आप देखना होगा कि मुझे कितना एंड बचेगा। ठीक है, फिर आपका दूसरा सवाल ये था हमारे पार्टिसिपेंट का, दैट वाज
कि यानी पहला सवाल आपने ये पूछा था कि बहुत सारे आइडियाज ऐसे होते हैं जिसमें लॉस हो जाता है और प्रॉफिट नहीं मिलता। बिल्कुल, मैंने इनिशियली यही बात से कि मैं यूएस की एग्जाम्पल बाबर से ले रहा हूँ क्योंकि वो इस वक्त मार्केट लीडर्स हैं, माने ना माने, दे आर मार्केट लीडर्स इन द बिजनेस इंडस्ट्री। चाइना भी है। स्टार्टअप्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो यूएस के अंदर जहाँ पर फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, हमारे पास तो फैसिलिटीज़ की भी मसले मसाइल हैं। ऑनलाइन करने के लिए हमें बड़े इशूज़ होते हैं कि हम ऑनलाइन कैसे करें, वी डोंट हैव प्रॉपर कैमराज, वी डोंट हैव प्रॉपर माइक्स, तो वो सारे इशूज़ हैं। फिर आप लोगों की पार्टिसिपेशन का इशू है कि आप लोग अगर जाते हैं तो ऑनलाइन कभी लाइट चली गई तो इंटरनेट बंद हो गया, सारे इशूज़ फिर आते हैं। हमारा पहला सेशन जब इस तरह हुआ था उसमें हमें कितने इशूज़ फेस हुए थे। तो वी आर डेवलपिंग कंट्रीज़, ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, यानी पाकिस्तान जो है भी डेवलपिंग कंट्री है, यूएस तो एक वेल ऑलरेडी, ठीक है। अगर हम उसी एग्जाम्पल जहाँ पे तमाम रिसोर्सेज मौजूद हैं, जहाँ ट्रेंड मौजूद है, जहाँ पे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, जहाँ पे राइट मेंटोर्स मौजूद हैं, जहाँ पे फैसिलिटेशन मौजूद है, वहाँ पर द सक्सेस स्टार्टअप्स इज ओनली 10%। आउट ऑफ 10 स्टार्टअप्स 9 फेल विद इन देयर फर्स्ट ईयर। 10 में से 9 स्टार्टअप्स अंदर फेल हुआ था। तो बिल्कुल ये कोई कि इसमें कोई जादू की छड़ी है कि मैजिकल वॉन्ड है कि आपने स्टार्टअप किया आपने एमवी बना दिया, उसके बाद बिजनेस चल पड़ी। इन्होंने बड़ा ही मुश्किल अंदाज में जो है वो बिजनेस खड़ा किया। फाइनली अब जब उन्हें बिजनेस को आगे लेके चलना है, कोविड आ गया, बिजनेस बंद हो गया। अभी वापस से बिजनेस स्ट्रगल करके आगे आ रहे हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि सेकंड वेव की वजह से फिर से लॉकडाउन हो जाएगा। तो लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स। तो इसमें तो कोई राइट और रॉन्ग, बिजनेस चले ना चले, ये तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो ये तो बिल्कुल बिजनेस का पार्ट है। दैट इज व्हाई वी ऑलवेज से हायर द प्रॉफिट। बिजनेस के अंदर अगर आप एग्जांपल अगर आप देखें तो बिजनेस में आपके पास एक्सपोनेंशियली ग्रो करने का मौका है। अगर आप जो जॉब कर रहे हैं वही चीज़ बिजनेस में करेंगे तो आप शायद 2-4 लाख रुपए कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप जॉब में आपको 30-35 हज़ार मिल रहे होंगे, लेकिन आपको फिर रिस्क भी तो नहीं है जॉब के अंदर, ठीक है, कोई रिस्क नहीं है। बिजनेस कोविड आए ना आए, आपको आपकी सैलरी मिल रही है, ठीक है। रिस्क कम है, बिल्कुल है कि बहुत लोगों को जॉब से निकाल दिया है, लेकिन रिस्क बहुत लिमिटेड है। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, लास्ट टाइम मैंने शेयर भी की थी एग्जांपल ये, हमने बात की थी कुछ स्टार्टअप्स की कि आपको एक एग्जांपल शेयर की थी। एक सवाल देख लेते हैं जी। मैं आपको बिल्कुल एक और हमारे पास सवाल आया है, मैं सवाल बिल्कुल लेता हूँ ऑनलाइन। तो एक मैं पहले एग्जांपल लेता हूँ, उसके बाद फिर सवाल लेता हूँ मैं आपसे। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि हमारे पास के पास एक ऑनलाइन कोर्स भी हो रहा है, वहाँ पर भी कुछ एग्जांपल्स वहाँ से भी हमारे पास आ रही होती हैं, क्योंकि हम सब इकोसिस्टम में होते हैं तो चीज़ें डिस्कस। वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि एक मैट्रिक पास स्टूडेंट था जो जिसने एक मेमन फाउंडेशन से एक एसी किया। उसके बाद उसको बिजनेस में एंटर होना नहीं आ रहा है, तो उसको फिर कुछ मेंटोरिंग मिली, कुछ ट्रेनिंग्स मिली। उसको ये बताया गया कि तुमने जो बिजनेस करना है टेक्निकली यू आर वेरी गुड एट इट, हमें उसमें कुछ में सिखाने की नीड नहीं है, हमें क्या सिखाना है बिजनेस करते कैसे हैं। उसको बताया गया कि भाई बिजनेस एथिक्स पे फोकस करो। बिजनेस एथिक्स क्या है कि जब आप बिजनेस काम करो तो आप अपनी इंटेग्रिटी और एथिक्स को मेंटेन रखो। जब आप अगर आपके शूज़ गंदे हैं तो वो बाहर उतार लो, ठीक है, ऐसे ही अंदर ना आ जाओ। जब आप काम कर रहे हो, लेबर जब काम कर रहे हो तो बहुत ही गंदगी करके आते हैं वो लोग। तो जहाँ पे आपका एसी काम हो रहा है तो वो नीचे एक कपड़ा बिछा लो और एक वाइप करके जाओ। 2 चीज़ें ऐड कर लो, बिजनेस में कुछ बेहतरी आ जाएगी। उस बंदे ने सेम वही काम किया जो 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 गली में के हर कोने पे बैठे हुए हैं, सब वैसे ही काम किया। उसने 2 चीज़ें ऐड कर ली बिजनेस के अंदर। विद इन कुछ फ्यू वीक अर्निंग 18 to 20,000 रुपीज़। उसके बाद 6-8 महीने बाद जो है ही वॉज अर्निंग 200,000 रुपीज़, यानी 2 लाख रुपये महीने के। नाउ ही इज़ विलिंग टू हायर कपल ऑफ गाइज। तो उसने हमसे रब्ता किया कि
आप हमें कोई कॉमर्स के या इंजीनियर स्टूडेंट्स हमें हायर करके दे दें, हम 20 से 25,000 रुपये देंगे और हम उनको हायर करेंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास। यहाँ पे 25,000 की नौकरी है, उसके अपने फायदे नुकसान है। आपको वो जो इनिशियल फेज था रिस्क वाला, वो आपने नहीं गुजारना पड़ा, आपको फॉरन जॉब मिल गई, सेट जॉब मिल गई। लेकिन हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, जहाँ उसने रिस्क बर्दाश्त किया, बाद वो 2 लाख रुपए महीने का बना रहा है, उसमें लाख रुपए महीने का बचा रहा है, और वो सिर्फ मैट्रिक पास है। तो द डिसीजन इज योर, सेइंग कि एवरीबडी शुड स्टार्ट इट, ये बहुत ही ज़्यादा ही एक गलत कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे इंडस्ट्री में एक आ गया है कि हम हर बंदे को बोलते हैं बिजनेस करो। अभी भाई हर बंदे का माइंडसेट ऐसा नहीं है, शौक नहीं है। वही वाली द थ्योरी ऑफ वाई, उसका वाई नहीं है आप जबरदस्ती वाई उसको बिजनेस करा रहा हूँ। इफ ही और शी इज कंफर्टेबल इन डूइंग द जॉब करो। हमारा सवाल खाली ये है, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, ये बीइंग द एडवोकेट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स या एंटरप्रेन्योरशिप, हम ये कहते हैं कि अ माइंडसेट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, फिर जो करना है करो। वो माइंडसेट क्या है? वही वाला कॉन्सेप्ट, द थ्योरी ऑफ वाई, आइडिएशन प्रोसेस, एमवीपी, अपने हर काम में ये करें, जॉब में भी यही करें। वो माइंडसेट डेवलप करें, टेकिंग द रिस्क, टेकिंग द हायर स्टेप। अब मिसाल तौर पे कि अगर कोई बंदा जो है वो एक जॉब पे है, लेट सपोज कि एक बंदा जॉब पे है, वो 50,000 महीने कमा रहा है, वो समझता है कि यार मैं अपनी लाइफ में कम कमा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं आगे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। सिमिलरली उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो कहता है कि भाई लेट सपोज वो जॉब कर रहा है अकाउंटेंट की, कहता है यार अकाउंटेंट की जॉब जो है मेरे लिए, लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होगी, लेकिन वो बोलते हैं मेरे लिए बहुत बोरिंग है, मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ, मेरे लिए जो द थ्योरी ऑफ वाई है ना, मैंने आज सुनी है और मुझे समझ नहीं आ रहा है काम ये, मैं शिफ्ट करना चाह रहा हूँ अपना टेंशन। अब उसके बाद अपॉर्चुनिटी आई है, 22,000 रुपये की जॉब है, लेकिन सेल्स की जॉब है। नाउ दिस इज अ डिसीजन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो वो जॉब छोड़ेगा और 22,000 की नौकरी करेगा, और उस 22,000 नौकरी से वो जब करता करता वो 4, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट जो होता है वो ये होता है, वो स्टिल जॉब में ही है, लेकिन जो माइंडसेट कि वो आगे बढ़ेगा, उसको पता है कि ये अकाउंटेंट वाली जॉब में मैं कर रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट नहीं, मैं यहीं पे रहूंगा 40,000 रुपये में। वो 40,000 की नौकरी छोड़ के 22,000 की नौकरी ऑप्ट कर टू गेट 4 लाख रुपीज, वो पूरा रिस्क उठा रहा है जॉब में। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि या कोई अगर बोलता है यार कि एंटरप्रेन्योरशिप इन द बिजनेस, द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज द लीन स्टार्टअप, वो यही है कि आप अपनी जर्नी में एंटरप्रेन्योरल जर्नी लेकर आए, एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट लेकर आए, ठीक है। अच्छा, आपका सवाल आया था ऑनलाइन, टूबा का सवाल था। क्लिक कर दिया यहाँ पे सवाल। जी, आपका सवाल है सर, ऑनलाइन में ऑर्डर्स मिलते नहीं हैं, इसमें हमारी मिस्टेक क्या होती है? अच्छा देखिए, ऑर्डर्स मिलना ना मिलना वही वाली बात में बात, मैंने आपसे कहा कि एट टाइम्स होता क्या है कि वी आर गेटिंग द राइट कस्टमर्स, क्योंकि ये एक बहुत ही प्रिलिमिनरी और बेसिक लेवल पे हमने ये बात रखी है, गुफ्तगू रखी है। आप जो सवाल पूछ रही हैं ये मसाइल है, ठीक है। ये हम द बिजनेस कैनवस मॉडल, हमारा ट्यूसडे को सेशन एक होने वाला है, उसमें हम डिस्कस करेंगे, वो भी मैं ही कंडक्ट करा रहा हूँ। तो ट्यूसडे को होगा सेम टाइम द बिजनेस कैनवस मॉडल, उसके अंदर बिजनेस के अंदर के मसले मसाइल को हम डिस्कस करेंगे। तो आपने सवाल पूछा, मैं फिर भी उसको एड्रेस कर देता हूँ कि हम जो है वो ऑनलाइन पेज बना लेते हैं। अब जैसे कि बोला सर, आपने बोला कि भाई कि आपने जो है ऑनलाइन पेज बनाओ, मुझे शौक था कि मैं आर्टिस्ट हूँ, नॉट बाय प्रोफेशन बाय पैशन, मुझे शौक है ड्रॉ करने का। तो मैंने वो पेंटिंग्स ड्रॉ की हैं और मैं उसको सेल करना चाह रही हूँ या करना चाह रहा हूँ। मैंने ऑनलाइन फेसबुक पेज बनाया है और मैं ऑर्डर ही नहीं आ रहे। आप तो कह रहे थे कि फेसबुक पेज बनाओ, ऑनलाइन डालो, ऑर्डर्स आएंगे, पता लगेगा बिजनेस चलता ही नहीं चलता। अब मैं क्या करूँ? क्या मैं ऑर्डर बंद कर दूँ, बिजनेस नहीं करूँगा ये वाला मैं? बहुत वैलिड सवाल है। अच्छा, इसमें होता है कि एक कॉन्सेप्ट कहलाता है सेगमेंटेशन का। यू नीड टू टारगेट द राइट मार्केट, राइट ऑडियंस बहुत ज़रूरी है। कि मैं लेट्स सपोज कि मैं एक ऐसी ट्रेनिंग जो डॉक्टर्स के लिए हो, वो मैं आप लोगों के सामने रखूं, से स्टूडेंट्स हैं, तो वो रिलेट ही नहीं कर पाएंगे।
तो इवेंचुअली एंड में क्या होगा कि या तो आ रहे होंगे या वो अगर बैठे हुए हैं तो उनका इंटरेस्ट नहीं होगा, वो रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे। मैंने बोलूँगा यार मैंने इतनी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन दी है एक जो है किसी मेडिसिन पे, या मैंने फिर वो चल ही नहीं रही। मुझे लगता है लोग इंटरेस्टेड नहीं है इस प्रेजेंटेशन के अंदर। मेरी गलती है, मेरी स्ट्रेटेजी गलत है। मैं उन लोगों को अप्रोच कर रहा हूँ जो इंटरेस्टेड ही नहीं है मेरे प्रोडक्ट के अंदर। अगर स्टाफ ऑनलाइन बेच रही हैं तो अगर वो ऐड अगर राइट टारगेट नहीं किया हुआ या उसमें ज़्यादातर मेल्स हैं या वो जो स्टाफ पहनते ही नहीं है तो कौन बाय करेगा? मैं देखूंगा भी नहीं उसको। ठीक है, आपका टारगेट हो ज़्यादातर यूज को होगा तो माशाल्लाह सब लोग कवर करते हैं मोस्टली, तो शायद आपको राइट मार्केट मिल जाएगी। तो आपके सवाल का आंसर शॉर्ट में दूं, जो थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो रहा था, लेकिन मैं शॉर्ट में इसको मैं सम अप कर दूं कि यू नीड टू टारगेट द राइट ऑडियंस। कि अगर आप समझते हैं कि मैं अपने घर वालों में वो चीज़ शेयर कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वो कोई इंटरेस्टेड नहीं है तो वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे, उनके लिए प्रोडक्ट नहीं है वो। अगर आप कोई यूथ ओरिएंटेड प्रोडक्ट सर्विस दे रहे हैं, कोई बहुत डिजिटल ओरिएंटेड है और किसी आप अपने खाला मामू चाचा ताया को आप पिच कर रहे हैं, तो क्यों इंटरेस्टेड होंगे वो कहेंगे अच्छा ठीक है बेटा बहुत अच्छा अल्लाह आपको कामयाब करे, लेकिन इंटरेस्टेड नहीं होंगे वो। So this is my brief comment on your question. सुबह अगर आपको इसका आंसर क्लियर हो गया तो आप कमेंट लिख दीजिएगा, और कुछ सवाल अगर किसी का हो तो वो आगे आप बता दें, देन विल मूव ऑन टू दी फाइनल स्लाइड्स, फिर इसको हम समअप करेंगे। और किसी को सवाल यहाँ पर है? जी अभी कोविड में जो सिचुएशन चल रही है तो हम कौन सा मोड ऑफ मार्केटिंग यूज करेंगे? ऑनलाइन सेलिंग। अच्छा, मैं सवाल रिपीट कर देता हूँ कि हमारे जो फिजिकल वहाँ से सवाल आया है कि व्हाट इज द बेस्ट मोड ऑफ मार्केटिंग फॉर ऑनलाइन बिजनेसेस। ठीक है, अच्छा इसका आंसर जो है ना कोई भी स्पेसिफिक नहीं है। अगर मैं बोलूँगा कि हर हर जो मोड है, एवरी मोड बैक्ड बाय द राइट स्ट्रेटेजी। मतलब क्या हुआ, इंस्टाग्राम या आप जो है फेसबुक या आप जो है फेसबुक गूगल एडवर्ड्स पे जा रहे हैं, आप कोई भी चीज़ चूज करते हैं, अगर वो राइट स्ट्रेटेजी से बैक राइट ऑडियंस को तक पहुंच रहा है, दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। क्योंकि स्ट्रेटेजी का मतलब ही ये है कि देखें इसमें कोई ऐसा आंसर नहीं हो सकता कि भाई अगर मुझे नज़ला हो रहा है तो मैं या कोई एक्सरसाइज की आप कोई मेडिसिन ले लें। ठीक है, तो कोई आपको कभी भी कोई अगर दे रहा है तो वो आपको मिसगाइड कर रहा है। कभी भी इसका राइट आंसर कभी नहीं हो सकता, वो राइट अप्रोच हो सकती है। देयर इज नो राइट आंसर टू स्टार्टिंग योर बिजनेस, स्टार्टिंग योर राइट करियर, चूजिंग द राइट मार्केटिंग मोड। कोई राइट आंसर नहीं है, राइट अप्रोच है। दैट राइट अप्रोच तो आपकी इवेंचुअली जो आपकी जो मोड है वो सही हो जाएगा। जस्ट टू ऐड इन कि आपका सवाल होता है कि कौन से मोड चूज करें, तो देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स। अब लोग क्या कहते हैं कि आप किसी मार्केटिंग एजेंसी के पास जाएंगे, अगर आपका बिजनेस वेल स्टैब्लिश, मैं मार्केटिंग एजेंसी को ऑन बोर्ड लेना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ मैं, तो वो जो बहुत अच्छे नहीं है, यानी कि जो बिल्कुल मीडियोकर एजेंसीज हैं, वो क्या करेंगी, आपको आपको बोलेंगी कि आपको वो क्वांटिटी बताएंगी, गोइंग टू मेक पेजेस ऑन ट्विटर, ऑन टिकटॉक, ऑन फेसबुक और फलान ढिमकाना लिस्ट लगा देंगे वो। भाई क्या करना है क्या उससे? माइट ही पॉसिबल आपके फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई कि जो आपकी ऑडियंस है वो कहाँ कौन से प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा कर रही है, आपका जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पे ज़्यादा इन हो रहा है। कि Pinterest पे अगर मैं लगाता हूँ कि आई एम स्टार्टिंग अ ट्रेनिंग, तो मुझे नहीं लगता वहां से वो अच्छा रिस्पॉन्स आने वाला है, वो ज़्यादा पिक्चर ओरिएंटेड चीज़ है। हाँ, अगर आप जो कैनवस जो ड्राइंग्स हैं अगर वो आप ऑनलाइन सेल करते हैं, शायद Pinterest इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि वहाँ लोग पिक्चर्स के लिए जाते हैं। ठीक है, तो यू नीड टू आइडेंटिफाई द राइट अप्रोच कि कौन सी ऑडियंस कहाँ पर आती है। जो आपको ये गाइड कर रहा है आप उसको बता रहा है। तो अगर आपको ये बोल रहा है कि आप जो है काम करो, ऑडियंस नहीं आ रही है, तो आप यूट्यूब पे एक पेज बना लो, आप जो है वो फेसबुक पे भी एक पेज बना लो, ट्विटर, लिंक्डइन, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और जो है Pinterest सब पे बना लो, आपको बहुत सारे पेजेस बन जाएंगे तो सीरीज बढ़ जाएगी।
क्वांटिटी गेम नहीं है, क्वालिटी का गेम है ना, कि कहाँ पर ऑडियंस ज़्यादा आ रही है, कौन सा कहाँ पर आपकी ऑडियंस ज़्यादा उस पर शिफ्ट हो रही है। तो हाँ हाँ, टारगेट नहीं, दोनों चीज़ें, टारगेट मार्केट कहाँ पर है और फिर उसके बाद भी राइट अप्रोच। आपने पोस्ट बनाया, टेक्निकल ग्राउंड होते हैं, पोस्ट बनाया फॉर फेसबुक, वही आपने पिंटरेस्ट पे लगा दिया, तो शायद उस आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा, क्योंकि दोनों की डिफरेंट डायनेमिक्स हैं, उसके व्यू डिफरेंट है। तो द पोस्ट ये शुड बी जो आपके हैंडल है उसके फ्रेंडली होने चाहिए, ठीक है। इंस्टाग्राम डिफरेंट वे ऑफ ये वो आपने डाला, सिर्फ पिक्चर डालते हैं और सिमिलरली ये प्रेजेंटेशन है, तो अगर मैं इसमें बम्बार्ड कर दूं वर्ड्स ही वर्ड्स, वर्ड्स ही वर्ड्स, स्लाइड्स भरेंगी इसके अंदर, सारा कुछ लिखा हुआ ही है, तो आपका फोकस जो है वो मुझसे हट के स्लाइड पे जाएगा। अभी पिक्चर है, बड़ी सी कैची सी पिक्चर है, आप देख रहे हैं कि नेटवर्क वाली बात हो रही है, तो समझ में आ रहा है, वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा कि एक बात है, क्योंकि मैं हर जो 4 सेगमेंट्स में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ हर सेगमेंट में एक बात इनकलकेट करने की कोशिश की है। अगर मैं एक में दूंगा तो आप समझ जाइए कौन सी वाली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो राइट अप्रोच, ऑल्दो हर चीज इंपॉर्टेंट होगी, वो बाकी चीजें लेस इंपॉर्टेंट ही मैंने वो बोल दी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपके तो, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी वो मैंने लिख दी, जिस चीज को मैंने आपके माइंड में इंटैक्ट करना है, ठीक है। आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। अच्छा, एक और हमारे पास एक और है, दैट इज सर क्या ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी रजिस्टर्ड होना ज़रूरी होता है? अच्छा, इसमें बिल्कुल ये शफीक साहब ने साहिबा ने पूछा है कि कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन की नीड है या नहीं है। बिल्कुल, अगर ऑनलाइन आपका जो बिजनेस अगर आपने करना है उसमें देखिए नीड तो होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे है अभी। इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर बिजनेस और आपको पता ही नहीं है कस्टमर्स आएंगे, और आपने सिर्फ और सिर्फ वही MVP वाला कॉन्सेप्ट है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट है, अगर आप उस तो आपने आपको जरूरत नहीं है रजिस्टर कराने की, आप ऑनलाइन चेक करें। अच्छा, ये कंट्री टू कंट्री भी वेरी करेगा, जो लॉज होते हैं, क्योंकि ये हम अलग से एक सेशन रख सकते हैं कि उसमें एक अलग गाइडेंस होती है कि मैं आपको बता दूं, कल को आप इस बात को कोट करेंगे ये तो हमने यूएस में प्रोडक्ट बेचा और मुझे जो है क्या या बैन हो गया, यूएई में आपने बेचा। तो मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की डायनेमिक्स के हिसाब से कि बिजनेस रजिस्टर कराते क्यों हैं, दो वजूहत से। तो आपकी लीगल ऑब्लिगेशन होती है कि भाई आपको जो स्टेट है वो पाबंद करती है कि आपने बिजनेस रजिस्टर करा। दूसरा, अपने आपको सेफ गार्ड करने के लिए कि आपने इतनी मेहनत की बिजनेस को रजिस्टर करा, आपने बिजनेस को आपने ट्रेडमार्क भी नहीं कराया हुआ, आपने बिजनेस को आगे बढ़ाया, करते करते जो है वो इस लेवल तक लेके पहुंचे हैं कि अब वो बड़ा नाम बन गया है। लोगों ने देखा यार ये तो बिजनेस बड़ा आगे बढ़ना, उन्होंने रजिस्टर करा दिया, क्या होगा फिर? आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, लीगली कैसे आप उसको पाबंद करेंगे? तो दो वजूहत की वजह से थिंक योर प्रोडक्ट सर्विस इज वेरी यूनिक और वो इजीली कॉपी हो सकती है, गो अहेड, आप डे वन से इसको रजिस्टर करा लें। बट इफ यू थिंक कि आपका प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ है और वो आगे मैं चेक करना चाह रही हूँ, ये चाह रहा हूँ, तो आई डोंट थिंक इनिशियली बहुत ज़्यादा नीड है रजिस्टर कराने की, आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन स्कूल प्लेटफॉर्म में। हाँ, वंस यू आर प्लानिंग टू गोल पब्लिक, ज़्यादा बड़े पैमाने पे लॉन्च करना चाह रहे हैं, देन रजिस्टर कराएं उसको, बाद में इशूज आएंगे उसमें। और कोई सवाल किसी का? जी जी, मैं सवाल रिपीट कर देता हूँ। सवाल इनका ये है कि हमारा कोई प्रोडक्ट अगर बहुत यूनिक है और लोग उसके बारे में जानते नहीं हैं, तो व्हाट इज द राइट मार्केट दैट प्रोडक्ट? अच्छा, मार्केटिंग की अगर हम बात करते हैं तो वी हैव फेजेस ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। फेज होता है अवेयरनेस फेज, ठीक है, हम इसी पे रहते हैं, बाकी तो डिटेल बहुत आगे पहुंच जाएंगे। अवेयरनेस फेज, अगर आपका प्रोडक्ट इज वेरी यूनिक, इसको यूज कैसे करना है, तो पहला जो दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट ऑफ एनी बिजनेस। अगर आप ऐसे प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं लोग जानते नहीं हैं, तो आप जो है ना वो टाइम और ना वो तैयार रख लें, क्योंकि आपका जो
टाइम है ना वो अवेयरनेस में निकल जाएगा। जस्ट एक ज़माना ऐसा था कि पानी खरीदना वॉज अ वेरी मतलब कि स्टूपिड थिंग आई वुड से। पानी खरीद के पियोगे? और पानी को खरीदने मतलब कि आज अगर मैं कि आप ना ऑक्सीजन के जो है ना कैंस परचेज करेंगे और वो लगाएंगे। आप लोग हंसेंगे यार तुम कैसी बातें कर रहे हो यार कि आप ऑक्सीजन खरीद के हम कैंस में मिल रहा होगा। कुछ चाइना में कुछ ऐसी सिटीज है वहाँ ऐसा होता है कि इतना पॉल्यूटेड प्योर ऑक्सीजन चाहिए तो आप बाय कर सकते हैं। ये कैंस होते हैं, उसमें स्प्रे होता है, उसमें मास्क लिया जाता है, स्प्रे करके आप ऑक्सीजन प्योर लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ही उसका हाल चल रहा है, जो इतनी डस्ट हो रही है और जो मौका है, लेकिन कल को ये अगर हम हाँ, तो मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा था कि नेस्ले ने क्या किया। एक ज़माना ऐसा था कि जब पानी खरीदना वॉज नॉट अ फिजिबल ऑप्शन, लोग बॉयल करके पीना पसंद करते थे। ठीक है, नेस्ले ने क्या किया, इतनी कैंपेन्स रन की और बताया बीमारियां हो रही हैं और जो बीमारियों से मर रहे हैं, उसकी जो प्राइम वजह है दैट इज दी ये खराब पानी। इस खराब पानी की वजह से लोग मर रहे हैं। उसने एक हाई पीरियड की, उसने एनजीओ को उस पर लगाया और प्रॉपर कैंपेनिंग रन की फॉर अबाउट गुड मतलब 5 to 10 years, एक जनरेशन। और आज का दिन है कि हम नल में अगर मुझे कोई गारंटी दे देना कि यार ये पानी साफ है, तब भी मैं नहीं पीऊंगा वो, रिगार्डलेस से आपके पास पानी खरीदने के पैसे हों ना हो। मैं बर्दाश्त कर लूंगा कि यार दो वो नहीं पीऊंगा। ऐसा ही है। तो पैराडाइम शिफ्ट आया है, जो माइंडसेट का शिफ्ट आया है, वो कैसे आया है? वो ऐसे आया है कि उन्होंने अवेयरनेस बिल्ड किया। दे invested good 10 years along with a lot of money, जिसके बाद आज एवरी टॉम डिक एंड हैरी जो है वो ऑनलाइन जो है या कोई फिजिकली जो है वो पानी बेच रहा है। हर गली में खुले में वो कैसे बेच रहे हैं, वो मार्केट बनी। अगर आप ऐसा कोई यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस लेकर आ रहे हैं तो यू नीड टू इन्वेस्ट अ लॉट इन अवेयरनेस प्रोग्राम। टाइम पे आपको कोई कस्टमर नहीं मिलेगा, लोगों का सिर्फ जहन साजी हो रही होगी। इसको फादर बोलता है। सेलफोन्स का आदि बनाया नहीं बनाया। एक गरीब बंदा जो लेबर है उसके हैंड फ्री लगे होते हैं, उसके पास ये नहीं पता होता कि दोपहर खाना में कैसे खाऊंगा, लेकिन वो मोबाइल पे कुछ ना कुछ सुन रहा होता है कि नहीं ऐसा? दैट इज हाउ पैराडाइम शिफ्ट्स आर डन। लेकिन आसान काम नहीं है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड अ लॉट ऑफ मनी। हार नहीं मानना चाहिए। ठीक है, उसके लिए फिर क्या होता है कि नॉर्मली ये काम जो चल रहा होता है ना, दैट इज मतलब गुड फॉर एनजीओज कि अच्छा इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको लगता है इफ़ यू थिंक इफ़ योर प्रोडक्ट इज जो है इस मार्केट के लिए तैयार नहीं है, स्विच टू अनदर मार्केट। आप ऐसी मार्केट को पेश करें जो उसके लिए तैयार है, रादर इन्वेस्टिंग a lot of money as a startup in convincing us or the students of University of Karachi or citizens of Pakistan. You can that concept to the citizens of UAE or UK or USA. Are you getting my point? मार्केट अगर अपनी मार्केट को भी चेंज कर सकते हैं आप। यू कैन चेंज योर मार्केट एज वेल टू बूस्ट योर। एनी मोर क्वेश्चंस? अगर और कोई सवाल नहीं है तो फिर वी विल एंड दिस सेशन। आई हैड अ वेरी ग्रेट टाइम विद यू गाइस और इट वाज सेशन और बड़ा मज़ा आया। एंड आई होप कि आप इस जर्नी के साथ जस्ट टू कंक्लूड माय, हमने 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं वो आप साथ लेके जाएं। क्योंकि किसी भी प्रेजेंटेशन में हमेशा से अपने आप से ही पूछा करें कि हम घर लेके क्या जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चाय पानी कुछ नहीं मिल रहा है तो आप सिर्फ बात ही कर लेके जाएंगे। तो only 4 things should be in your mind when you are exiting the training hall. First one is, second, ideation process. Third, lean startup. Fourth, your network. ठीक है? With that note, I'll end my training. Thank you very much for attending and thank you our online participants. It was nice talking to you. Allah Hafiz. Thank you so much, Talha, for conducting an amazing session. Thank you to everyone who's attending this session. I जी hope you had an amazing experience and you will apply any of the learnings in the future. Thank you so much, everyone. Allah Hafiz.
अल्लाह हाफिज़।